हमारी जनता as it is corrupt हो चुकी है watching porn and OTT. Men expecting that their wives be Sunny Leone on the bed, then suddenly when mother comes down she will become सूरज बरजातिया की दुल्हन है, वैसे जल पिएंगे टाइप. Doesn't happen यार. ऐसी dichotomy का expectation रखना है stupidity. अपने पार्टनर को हर रोज ये बोलने के बाद आई लव यू, व्हाई डू पीपल स्टिल चीट? हमारी जो सोसाइटी हमको आइडियल मैरिज भी दिखाती है. राम सीता की शादी आइडियल थी. सच अ गुड हस्बैंड टू अ वाइफ. गुड हस्बैंड, यस और नो? आई वुड नेवर वांट अ हस्बैंड लाइक दैट. गुड आंसर. लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज ग्रे. आपने कभी किसी को राय दी है कि यू शुड नॉट गेट मैरिड ओनली? मेनी टाइम्स. एंड हाउ टू स्टॉप कम्युनिकेशन टर्निंग इनटू अ फाइट? टेक ऑफ योर क्लोथ्स, स्विच ऑफ द लाइट, लेट्स जस्ट फक. इट्स स्टूपिडिटी. अब एक कॉन्सेप्ट आ गया ओपन मैरिज का. अब छुपा नहीं सकते तो खुले में कर लेते हैं. इज दैट बैड? मुझे नहीं लगता. व्हाई? एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो इंडिया में बहुत चल रहा है, थ्रपल. 3 people being in. लोग क्लैरिटी के साथ शादियां करते हैं या सिर्फ इस होप में करते हैं कि इतना सा भी कुछ डाउट हुआ, अरे ये तो ठीक हो जाएगा? लोग जुआ खेलते हैं. बिगेस्ट गैम्बलर्स दैट आई हैव सीन आर द पांडवर्स. आपको लगता है कि पहले भी इतनी चीटिंग होती थी? You're traveling salesman, you're going to Singapore, one night stand चाहिए, go on this app, profile match हुआ, have one night stand. कौन से वो साइंस होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है? 3 very important signs. Sudden secrecy, number 1. Number 2, and the most important, sudden change in libido. Can you explain that? The dirty question is not sex. लड़की को ये पूछना जरूरी है, मेरे घर वालों को अगर कभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हुई, पैसे जो खुद कमा रही हूँ अपने घर पे दे सकती हूँ? It's a taboo question ना यार. Absolutely. औरतें अभी भी शर्माती हैं अपनी नीड्स बताने में. आदमी को तो पता ही नहीं होता कि औरतों को भी ये रिक्वायरमेंट है, but she also comes. I would never say a woman characterless. हम पूजा करते हैं शक्ति की. In spite of all this, look at the crimes that are committed against women. मर्द इमोशनली अनअवेलेबल इसलिए है क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है, एंड उसकी वजह से इमोशनल चीटिंग सबसे ज्यादा औरतें करती हैं. Kapil Dev cried in the match fixing saga game. We didn't like him because how can he cry? A role model. Sorry. Women go through periods. Men also have similar problems. Are you aware? You're not. No one is aware. He Tell doesn't us have. more about this. Yeah. Hi everyone, welcome back to Wed FM India Season 2, India's first wedding podcast. Today's conversation is not about judging relationship, it's about understanding them. Our guest today is someone who works at the exact place most relationships begin to crack. Not at the wedding, not at the honeymoon, but in the silence that comes after. Dr. Sheetal Nair is a psychologist and an affair recovery coach who has spent years working with couples, individuals, and families dealing with emotional distance, infidelity, trust breakdowns, and the hard questions people are usually too scared to ask out loud. So, what makes his work different is that he doesn't look at cheating, conflict, or separation as isolated incidents. He looks at the emotional patterns, unmet needs, and unspoken truth that lead people there. So, in today's episode, they're not here to justify cheating, breaking marriages, or tell you what's right or wrong. We're here to talk about why relationships struggle, why people hurt the ones they love, and what emotional honesty actually looks like after the wedding is over. So, this conversation may make you uncomfortable, but if you have ever loved deeply, stayed silently, questioned your marriage, or wondered why relationship feels so hard, so this episode is for you. Wed FM. Hi, Dr. Sheetal. Hello. Welcome to Wed FM's couch. You know, जितनी बार भी कोई गेस्ट मेरे सामने बैठता है ना, मैं सबको ही बोलती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू. एंड मेरी टीम हमेशा मुझे डांटती है कि स्टॉप सेइंग दैट, कुछ तो अपनी लाइंस को बदलो. बट I personally feel that when you are truly grateful to have someone, there is no substitute to it, right? True. And genuinely having this conversation with you before, sitting on this couch, I am pretty sure that the way I have learned in 15 minutes of this conversation, I'm super sure that सब लोग इस conversation से बहुत कुछ सीखने वाले हैं. And once again, welcome to Wed FM's couch. And let's do it. Thank you, Shana. It's really nice to be here. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके before the session. But let's begin. Definitely. But Wed FM का एक ritual है. It's a very small ritual that we have.
we say that देखो प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, बट आई वांट टू आस्क यू, पर आप जो ये करते हो, हाउ डिड यू लैंड हियर? What has happened? What's your personal journey? And what's your personal thoughts on marriage? What's your personal thoughts on relationship? All those things, but really want to know who you are as a person. वंडरफुल. सो यूजुअली ऐसे सवाल यूजुअली मुझे ना एकदम स्पॉटलाइट पे डाल देते. तो पहले मैं बहुत सारी चीज़ें कहता था, बट देन अब एक चीज़ है, मैं मानता हूँ कि एक सिंगल चीज़ ही आपको डिफाइन करती है, एंड मुझे डिफाइन करता है मेरा रिलेशनशिप. एंड आई एम अ वेरी प्राउड father to a very beautiful son. I'm a very proud husband to an amazing wife. I'm a proud son to amazing parents. So majorly that's what defines me. अब आते हैं इस पे कि मैं क्या कर रहा हूँ. How did I land up here? So मेरा जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है because I've dabbled in a lot of things. Mental health, psychology, पिछले 16 वर्ष से I've been practicing. Wow. And इस जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो सबसे आसान चीज़ हमारे आसपास है, एक रिलेशनशिप है. बच्चा बड़ा होता है तो अपने माँ बाप को देखता है, अपने भाई बहन के साथ रहता है, कजन्स हैं, रिलेशनशिप्स बड़े आसान हैं हमारे आसपास. ये चीज़ वही है जो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, एंड इसी में सबसे ज़्यादा दरारें होती हैं. सो आई स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट विद रिलेशनशिप्स एंड ट्राइंग टू क्यूरेट देम, ट्राई टू मेक देम हैप्पी, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड. एंड कोविड के दौरान या पोस्ट कोविड मुझे एक रीअवेकनिंग जैसा हुआ, एंड आई फाउंड माई सेल्फ अगेन, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अफेयर्स, इंटिमेसी. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बिकॉज ये सिर्फ वायरल, लाइक इंटरनेट का वायरल थीम भी नहीं है, बट दीज आर रियलिटी जो हमारी सोसाइटी में है. इंटिमेसी इश्यूज कपल्स के बीच में होते हैं. अफेयर्स आर वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी. आई थिंक हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतनी ज़्यादा रिलेशनशिप्स है, उतने ही ज़्यादा अफेयर्स एंड इंटीमेसीज के इश्यूज हैं. सो स्टार्टेड delving with them, and for the past few years I have been working on them, and I'm very proud to say that I'm a good counselor. I'm one of the only certified We're affairs so sure coach. about this. I'm one of the only certified affairs and intimacy coaches in India, and especially it's a rare combination to have men talk about this. You'll majorly have women talking about this. So I feel that I'm nearly an extinct species because there aren't too many men talking about it. So yes. It's very interesting to know. मैंने पहली बार टर्म सुनी है that affair के लिए भी कोई कोच की जरूरत होती है. This is so interesting. Is it like, are you teaching people how to have a perfect affair, or what is it like? Or I'm actually very curious to know that affair तो हमारी सोसाइटी के हिसाब से सिर्फ एक गलत है ना. Why are you even doing this? So I want to ask you that इसकी कोचिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? See, हमारी जिंदगी के आसपास जो चीजें हैं वो रियलिटी है, हमें वो एक्सेप्ट करना है. वी हैव नो अदर अपॉर्चुनिटी कि हम सोचे कि ये नहीं हो रहा है, हम एक्सेप्ट ना करें. वी कैन नॉट बी लाइक एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग, यू नो, समवन हु जस्ट डंक्स द हेड इनसाइड एंड से कि नहीं मेरे आसपास कुछ नहीं हो रहा है, मैं जैसे बाहर अपना सर निकालूंगा चला जाएगा. ऐसा हो नहीं सकता है. सो एज अ रियलिटी अफेयर्स आर रियल. ग्लीडन इज़ एन ऐप जिसके अगर आप फिगर्स चेक करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि अफेयर्स कितने ज़्यादा इंडिया में होते हैं, और वो भी मैक्सिमम मेट्रोज में होते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ मिसनॉमर बिकॉज आई फील नॉट जस्ट टायर 2, टायर 3, टायर 4 में तो होता ही है, गाँव में होते हैं, हर जगह होते हैं. एंड वाई डू यू नीड अ कोच फॉर हैविंग एन अफेयर? So the idea is not just to have an affair. The idea is that you have to understand कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या कमी है जिसको आप अफेयर के थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं. We are only looking for that we don't get in a relationship. So without putting a label to it, कि ये ठीक है या गलत है, we are just going in a deeper side of it and figuring that out कि हो क्यों रहा है. Absolutely. Amazing. My next question to you, because वेड एफएम है तो वेडिंग्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एंड अल्टीमेटली द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट इज to prepare our couples for marriage, not just for weddings. I mean, buying lehengas, booking makeup artists, booking your best photographers, all those things can be done. और ये कोई भी आपके लिए कर सकता है. But living in a marriage, it's going to be just you and him. So, why do you think that people spend so much money on weddings, but they do not really prepare couples to live or to stay in a marriage?
I don't think so, including me. My mom also did not sit with me to tell me that एक शादी को चलाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, चाहे फिर वो हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, शादी में तो रहना ही पड़ता है, इसके अलावा इसके बियॉन्ड जाकर तो किसी ने बताया ही नहीं. अगर इंटीमेसी के बारे में बात करते हैं तो एकदम से टैबू लग जाता है कि ओ व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस. सो आई वांट टू आस्क यू, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? हम इतने ओपन हो गए हैं बट दिस इज नॉट हैपनिंग. इसका ना थोड़ा सा लंबा जवाब है. No problem. आंसर स्लाइटली लॉन्ग. एंड मैं आपको चीज़ बताता हूँ, हम आज की तारीख में जो बातें कर रहे हैं बहुत रेलेवेंट है. शादी में कितना खर्च करता है इंसान. लोग लोन ले लेते हैं, लोग पर्सनल लोन लेते हैं, प्रोफेशनल लोन लेते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज शादी हैज़ टू बी आइडियल. अब हमारी जो पेरेंटिंग है, हमारी जो सोसाइटी है, हमको आइडियल मैरिज भी दिखाती है. जैसे अगर मैं जनरली आपको पूछूं कि राम सीता की शादी आइडियल थी, पेडेस्टल, सच अ गुड हस्बैंड टू अ वाइफ, गुड हस्बैंड, यस और बैड, यस और नो. ये हो सकता है सोसाइटी के लिए गलत हो, बट आई वुड नेवर वांट अ हस्बैंड लाइक राम जी. Good answer. Yeah. Now Krishna got married too. Yeah. Krishna got married to Rukmani, okay, but he was in love with Radha, right? Yeah. So, but he got married to Rukmani. Yeah. Did amazing stuff that he did. Shiva got married to Parvati. These are ideal weddings, ideal marriages that we see. So they are pedestal. Yeah. You know, Krishna की शादी is so amazing, but हम राधे कृष्ण कहते हैं. You know, we essentially give more leverage to love there. Now coming to this fact, when it comes to marriage, I would never say that Ram was a great husband because he loved his wife, but he let go of her. जैसे सोसाइटी ने प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी प्रजा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ दी. ये ट्रेनिंग हमारी सोसाइटी ने हमको दी है. आपको आपकी माँ ने भी ये ट्रेनिंग दिया है सबकॉन्शियसली. क्या पति जो कह रहा है सही है, मैनेज करो, टॉलरेट करो. एंड टॉलरेट कौन करता है? हमेशा स्त्री टॉलरेट करती है. क्यों? ये सोसाइटी का नियम है. एज अ वाइफ आपको गिव करना, यू हैव टू गिव अप, यू हैव टू गिव अप योर करियर, यू हैव टू गिव अप योर बॉडी बिकॉज यू बिकम अ पेरेंट. बॉडी गोज थ्रू सो मेनी चेंजेस, तो आपको वो भी छोड़ना है, आपको सैक्रिफाइस करना है. आपकी माँ, मेरी माँ, सारी माएँ अपने बच्चों को ऐसे तैयार करती है. क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने भी उनको ऐसे तैयार किया है. सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया, तैयार किया हुआ है. अब जैसे आप शादी जाते हो तो माँ बाप को लगता है हमने तो ट्रेन कर दिया बच्चे को, पढ़ा लिखा दिया, इतनी अच्छी रिलेशनशिप की टेक्निक समझा दी, बट वो ये रियलाइज नहीं करते कि अब मॉडर्न रिलेशनशिप्स इवॉल्व हो रही हैं. Why can a woman not take charge? She can take charge, she should take charge. औरतों में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है. मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई रियली फील दैट women are better than men. They can feel, emotions है उसमें. Men have emotions but share करना आता नहीं है. Low EQ है. Women have high EQ. They are emotionally very intelligent. So जो emotionally intelligent है वो चार्ज करेगा. अब जैसे women have these things, वो अपने रिलेशनशिप में वो करने की कोशिश करते हैं, मैरिज थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाता है. इस चीज़ की ट्रेनिंग कोई नहीं देता है. एंड ट्रेनिंग की बात छोड़िए, अगर अपनी माँ को जाके आप कहें कि मम्मी ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ तो मैनेज करो, हाँ तो मैं तुम्हारे पापा के साथ थी तो मैंने भी ये सब किया है, हाँ रिलेटिव के साथ प्रॉब्लम तो क्या हुआ, इन लॉज हैं, बुआ है, चाची है, सास है, ससुर है, मैनेज करो मैनेज करो मैनेज करो. कितना सफोकेटिंग लगने लगता है फिर ये, बहुत ज़्यादा. एंड एसेंशियली ये जो इंस्टीट्यूट है मैरिज, हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल मूलभूत फाउंडेशन है, ये एक्चुअली खोखला होता जा रहा है. बिकॉज एक औरत कितना टॉलरेट करेगी, कितना, कहीं ना कहीं वो अपने आप को तोड़ देगी. जैसे टूटेगा, सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी? बच्चों को. व्हेन अ मदर ब्रेक्स डाउन, द एंटायर फैमिली ब्रेक्स डाउन. Absolutely. When the entire family breaks down, children break down. यानी बच्चे आपके फ्यूचर है. यानी आप इस चीज़ के बारे में बात करते नहीं है. हमारी सोसाइटी को लगता है हमें इसके बारे में बात करना नहीं है, तो सोसाइटी जो है शतुरमुर्ग बन गई है. दे हैव बिकम लाइक ऑस्ट्रिचेस. दे फील दैट हम बात नहीं करेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं है. एंड ये चीज़ जो आपने कही बहुत सही है. शादी के बाद क्या करना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है. इसमें कोई बुक नहीं है. देयर इज नो 101 ways to marriage weddings which is taught by people. Exactly. There is nothing that is said. Yet we spend crores and crores on marriages. हमारी शादी का इंडस्ट्री इतना बड़ा है. It is so huge. Yeah. There are so many foreign brands which are getting into the play when it comes to marriages.
इसके बावजूद भी शादी के बाद क्या करना है, नो आइडिया. हनीमून करना है, बट उसके बाद क्या करना है, नो आइडिया. Exactly. I mean, मैं जब ये पॉडकास्ट से पहले तैयारी कर रही थी अपने क्वेश्चंस की, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग क्या कोई मूवी बनी है. सबने मूवीज़ बना ली कि बड़ी शादियां कैसे होती हैं, शादियां सीरीज़ लाइक मेड इन हेवन, प्लानर्स कैसे काम करते हैं, या फोटोग्राफर्स कैसे काम करते हैं. हर तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन किसी ने इसके लिए तो प्रिपेयर ही नहीं किया जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है. Correct. राइट. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. अभी ना बहुत टाइम से एक रील हमारे इंस्टाग्राम पर रोटेट हो रही है, जहाँ पर एक कोच है, वो बैठ के बोलते हैं कि शादी से पहले अगर आपके कुछ अफेयर्स रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर पार्टनर बिफोर दैट. सो you tell me as a professional, how much information about your personal life, if you're meeting your partner maybe in an arranged setup, or maybe if you had a love marriage as well, कितनी information आपको अपने पार्टनर को देनी चाहिए? हम दिल्ली में बैठे हैं अभी. दिल्ली में अभी सर्दियां हैं, ठीक है. मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ शॉर्ट्स और टी शर्ट में. क्या मैं दिल्ली की सर्दियों में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के बाहर जाऊंगा? क्यों? क्या होगा? You'll get cold. अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना. तो मैं प्रैक्टिकल बनूंगा. इवन दो मुझे शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पसंद है, उसके बाद भी आई विल कवर माई सेल्फ एंड स्टेप आउट. तो इट एक्चुअली मैटर्स कि आपके सामने कौन बैठा है. सो अगर आपके सामने कोई ऐसा इंडिविजुअल बैठा है जो इस चीज़ को ले सकता है कि आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो शेयर करिए. अगर नहीं ले सकता है तो वक्त लीजिए, देखिए क्या होने वाला है, उसके बाद शेयर करिए. शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाला कंफर्टेबल होना चाहिए. बैंडेड है, अब जैसे बैंडेड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. कैन रिप इट अपार्ट, कैन टेक इट स्लोली. इट डिपेंड्स, इज इट गोना हर्ट यू अगर आप रिप इट अपार्ट करते हैं? नहीं तो डू दैट. सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग हियर. वांट टू शेयर शेयर, डू वांट टू शेयर डोंट शेयर. दिक्कत कहाँ आती है पता है? आइडियल. हमें चाहिए एक आइडियल सिचुएशन, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड वाइट. मैं हमेशा ये मानता हूँ, सुना है कि लाइफ कैन नेवर बी ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ ग्रे. हम सब ग्रे है. कभी कभी चीज़ें हमारे लिए सही है, कभी नहीं है. Absolutely. No, I definitely second that. And it, like for example, I have a friend. When I see their chemistry, हम सबको बहुत uncomfortable लगता है जिस सिचुएशन में कई बार वो दोनों होते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्स वॉज सिटिंग ऑन द सेम काउच एज हिज वाइफ एंड दे वर शेयरिंग द सेम बॉन्ड, एंड आई फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल. आई सेड, how is it even happening? But then when I spoke to my husband, he said maybe it's working out for them. Right. So it's no right and wrong for them, so let it go. You are not in that situation. Not everything is supposed to be about you. Correct. Right. So I definitely agree with you. But do you think कि लोग क्लैरिटी के साथ शादियां करते हैं या सिर्फ इस होप में करते हैं कि अगर इतना सा भी कुछ डाउट हुआ, अरे ये तो ठीक हो जाएगा? सी, मैं मानता हूं कि लोग जुआ खेलते हैं. जो फैक्ट है, 99% मैरिजेस स्टार्ट ऑफ विद द आइडिया कि हो जाएगा. देन रिमेनिंग 40% एक्चुअली एफर्ट करते हैं, बताते हैं, चीज़ों को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, एंड देन उसके बाद शादियां होती है. तो आप देखेंगे डिवोर्सेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, और अभी डिवोर्स के रेट्स भी बढ़ रहे हैं. देयर सो मेनी डिवोर्सेस व्हिच आर हैपनिंग लेफ्ट राइट सेंटर. और ये क्यों हो रहा है कि हमने गलत पार्टनरशिप बना दी है, गलत साझेदारी है. साझेदारी एकदम गलत है. जैसे क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, हमने बहुत बार देखा है बहुत अच्छे बल्लेबाज होते हैं, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, अमेजिंग बैट्समैन, साथ में बल्लेबाजी करते हैं, बहुत बढ़िया है. अब अगर रोहित को पूछा जाए कि विराट की जगह मैंने तुम्हें रविंद्र जाडेजा के साथ पार्टनरशिप करने के लिए बोलते तो हो जाते? हाँ, हो जाता. पर क्या उसने की है? नहीं. तो शादी आपने की है नहीं, तो आप अज्यूम ही करने वाले होगी. जब तक आपने उस इंसान के साथ वक्त गुजारा नहीं है तो आप अज्यूम ही करने वाले हो जाएगी. अब इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, एसेंशियल है कि आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलना चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए. समझे तो सही क्या है, क्योंकि हम सब एक तरीके से काफ़ी हद तक फेक हैं. हम अपनी हकीकत दिखाते नहीं हैं.
आई मीन आप आज मुझे देख रहे हैं, मैं ये कपड़े पहन के बैठा हूँ, आई एम नॉट ड्रेस लाइक दिस जब मैं अपने घर पे होता हूँ, Yeah. बट आई हैव टू ड्रेस अप लाइक दिस ना, बिकॉज आई एम एट अ प्लेस. शादी के लिए आप लड़की को मिलने जाते हैं, लड़की आपको मिलने आती है, शी इज़ नॉट गोना बी द वे शी इज़. Yeah. बट आप जब उसके साथ रहते हैं तो उसकी रियलिटी है, तो क्या आपके लिए वो रियलिटी मैच होती है? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आपको अच्छा लगता है? अपीयरेंसेस आर समथिंग विच विल डिम. शादी एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है जिसमें ऐसा है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज दे आर. जिस दिन आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, इट कैन बी डन. सो क्लैरिटी का प्रश्न है, तो क्लैरिटी बिल्कुल होती नहीं है, जुआ है. बट हाँ, वो क्लैरिटी लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी. एसेंशियल है कम्युनिकेशन. सवाल पूछना, उस सवाल का सही जवाब सुनना भी एक दिक्कत है. वी डोंट लिसन. सो ये दिस विल हेल्प इन क्लैरिटी. अदरवाइज इट्स अ ब्लाइंड दैट यू आर प्लेइंग. आपको नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जुआ खेलने से पहले, जिसमें आपको पता है कि अगर गलत खेला गया तो आप तो बैंकरप्ट ही हो गए, डोंट यू थिंक इससे अच्छा एक लिव इन रिलेशनशिप में जाकर एक ट्रायल लिया जाए, जाना जाए कि आप कैसा महसूस करते हैं अपने पार्टनर के साथ, चाहे फिर वो गीला तौलिया वो कैसे बेड पे रखते हैं या वो क्या करते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स यू गेट टू नो बिफोर हैंड. ये गीला तोला पर्सनल एक्सपीरियंस है. I think I should not say that. Okay. आपके क्या विचार है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? See, if you ask me, I'm a risk taker. And मैं बहुत ही पुराने ख्यालों से आती हूँ और मुझे लगता है कि फिर वो प्यार ही क्या जहाँ पर आपने रिस्क ही नहीं लिया. Nice. तो आप जुआ खेलना चाहेंगे? तो I would love to have that जुआ in my life for sure. You know, the biggest juari that I've seen, or the biggest gamblers that I've seen, are the Pandavas. So मेरा एक सिंपल सुझाव सबके लिए ये होता है कि आज की सोसाइटी में लिव इन इज़ ओके. अब सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड इन फेवर. अगर हमने 20 या 25 साल पहले प्रश्न ये पूछा होता क्या लिव इन रखना है, रहना है, नहीं रहना है, तो शायद मेरा जवाब थोड़ा अलग होता. अब सिंस सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तो आपको ट्राई करने में क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव. बट द प्रॉब्लम इज, अब आज की जनरेशन की बात करें तो दिक्कत ये भी है कि वो उसको एक लाइसेंस मिल जाता है. तो कभी कभी स्टेबिलिटी फॉर रिलेशनशिप भी नहीं होती है. लिव इन करके देख लिया, 1 साल 2 साल रह लिया, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, टॉलरेंस लेवल है नहीं, तो आप निकल जाते हो. तो ये डाइकोटमी है. लिव इन अच्छा भी है, लिव इन बुरा भी है. लिव इन रिलेशनशिप को हेल्प भी करता है, कभी कभी रिलेशनशिप होने ही नहीं देता है. होता क्या सुनाया, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जो पसंद है सामने वाले का वही पसंदी हो. इट्स नॉट पॉसिबल. सो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों करते हैं, बट वो एक तरीका है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्राई करने की. ओके, इट इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी. बट या अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का मिस अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे और शादी या रिलेशनशिप में जाएंगे ही नहीं, तो वो भी एक दिक्कत है. बट अभी एक चीज़ समझिएगा, दिस जनरेशन डजंट वांट टू गेट मैरिड ऑल्सो. दैट इज़ अनदर थिंग. इज दैट बैड? मुझे नहीं लगता. टू ईच इज ओन. रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है. मैरिज एक फंडामेंटल लाइसेंस था जो आपको सोसाइटी का हिस्सा बनाए रखता है रादर. बिकॉज आप एक कपल को मिलेंगे तो आपको ये क्लैरिटी है कि हाँ, उस इंडिविजुअल ने इस इंडिविजुअल के साथ इन्वेस्ट करके अपने आप को एक स्टेबल स्ट्रक्चर दिया है. बिल्कुल. यू विल ऑलवेज ट्रस्ट अ कपल मोर देन 2 people who are in a live-in relationship. This is how our brains have been coded. So to each his own. I cannot say ये अच्छा है बुरा है. जिसको जुआ खेलना है खेले, जिसको नहीं खेलना है ना खेले. मैंने तो खेला है and it has worked for me. बट आप इतने केसेस हैंडल करते हैं, इतने लोगों से बात करते हैं, आप कितना यकीन करते हैं? आई एम श्योर बिकॉज यू हैव डेफिनेटली प्लेड दैट गैम्बल. बट आपने कभी किसी को राय दी है कि यू शुड नॉट गेट मैरिड ओनली? या मेनी टाइम्स. एंड कैसे आप वो फिगर आउट करते हो कि इसके लिए ये वाली एडवाइस बिल्कुल अप्रोप्रिएट है? सी, मैं किसी को ब्लैंकेट ऐसा लिख के नहीं देता तुझे कभी शादी नहीं करनी चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि अभी तो शादी के लिए सही नहीं है, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू. एंड कुछ लोग हमारे में से ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं है. सी, इफ़ यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन एल्स, यू कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज. आई मीन, मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि इंडिया एंड पाकिस्तान कैन एवर बी फ्रेंड्स. पॉसिबल नहीं है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. जो ये सोचते हैं कि हमारे बीच में अमन होगा वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा. सो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. तो ये लोग जो है,
जो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि हम दोनों या हम इस लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है, बने ही नहीं है. सो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करता हूँ कि हाँ मत करो. हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं जनरली लोगों को क्या कहता हूँ, सी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लिव इन में रहो. अगर आपके पास कूलिंग ऑफ पीरियड या प्री पीरियड है शादी के पहले, तो उस पीरियड को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाए. इसको मैं गोल्डन पीरियड कहूँगा, शादी के पहले का पीरियड, व्हेन यू गेट एंगेज्ड और you're about to get engaged. Courtship period. Yes, this golden period of courtship is when you should actually make an attempt to understand कि सामने वाला कैसा है. अब उसके भी तरीके हैं. There are 10 to 12 questions that you can ask and you can understand the other person's mindset. There are situations, जिस सिचुएशन में आप रह के समझ सकते हैं कि क्या इंडिविजुअल मेरे साथ रह पाएगा. जो प्रश्न कभी पूछे ही नहीं जाते, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और द डर्टी क्वेश्चन इज नॉट सेक्स, फिनेंस. लोगों को लगता है सेक्स इज डर्टी. इट्स नॉट. आई मीन इट्स गोना हैपन. अ मैन इज गोना गेट इरेक्ट, अ वुमन इज गोना गेट वेट. सेक्स इज गोना हैपन. बट फिनेंस, पैसे की बात कौन करता है? क्या कंफर्टेबल है? अब एक लड़की हमेशा, एक लड़की को ये पूछना ज़रूरी है कि मेरे घर वालों को अगर कभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हुई तो क्या मैं वो पैसे जो खुद कमा रही हूँ अपने घर पे दे सकती हूँ? इट्स अ टैबू क्वेश्चन, शनाया. Absolutely. It is a taboo question. It's an eye opener though. Because the boy will say, क्यों? Yeah. क्यों देना है? And if that is the sort of guy that you're with, then hello, please get out of the relationship. Yeah. Is the guy going to ask you? No. Why should you ask? See, finance, पैसा कैसे खर्च होने वाला है, ये सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए. अदर दैन द फैक्ट दैट आर यू रिलीजियस, यूर स्पिरिचुअल पर्सन, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, खाने पीने की हैबिट्स कैसी है, ये सब सेकेंडरी है. फिनेंस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको पूछने चाहिए. देयर आर 10 to 12 क्वेश्चंस. सो दीज क्वेश्चंस जब आप पूछते हैं, आपको आपके पार्टनर के बारे में पता चलता है. तो लिव इन ज़रूरी नहीं है. Live in always gives you better hands-on experience, but without live in also this is possible. So whatever works for you, whatever floats your boat. But yes, it is necessary to understand the other person. I played a gamble too, but then I had time. My wife understood me. I understood my wife. Absolutely. I'm sure it's the same for you. Yeah. I think two people, if they are on the same page, it definitely works. Even if they're not on the same page, and if the other person is ready going on that page, it's still fine, right? At least they are choosing the same path to live for each other. My next question to you, since you were telling all of us that there are certain questions जो आप सबको एक बार अपने पार्टनर से ज़रूर पूछने चाहिए. मेरा अब आपसे ये सवाल है कि चलो अब शादी फिक्स हो गई, अब सारी प्लानिंग हो गई है, सब हो गया है, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक ब्राइड को और एक ग्रूम को एक दूसरे से वो क्या करने चाहिए बिफोर इवन गोइंग अहेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जवाब है. एक तो आपको फिनेंस की बात करनी है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है. जी. दूसरा, जब हम सब बूढ़े होने वाले हैं, हम में से कोई इमॉर्टल है नहीं. अगर आपके माँ बाप बूढ़े होने वाले हैं, क्या आपके हस्बैंड कंफर्टेबल होंगे इफ दे कम एंड स्टे विद यू? आर यू कंफर्टेबल? यू शुड टॉक अबाउट दैट. जेरियाट्रिक डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज जब हो जाती है पेरेंट्स की, तो क्या होगा उनके साथ, क्या हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, बेडरूम हैबिट्स. अंडरस्टैंड बेडरूम हैबिट्स. मेनी टाइम्स कपल्स डोंट वर्क एंड अफेयर्स इतने ज़्यादा होते इसके लिए बिकॉज बेडरूम हैबिट्स पता नहीं है. हमारी जनता एज इट इज़ करप्ट हो चुकी है वॉचिंग पॉर्न एंड OTT. एक्सपेक्टेशंस का बार यहाँ है, आपको देना कुछ नहीं है बट आप एक्सपेक्ट करो ये. सो आई हैव सीन men expecting that their wives be Sunny Leone on the bed and then suddenly when your mother comes out she will become completely like a सूरज बरजातिया की जो दुल्हन है, वैसे घूंघट ओढ़ के पैर जल पिएंगे टाइप्स. इट डजंट हैपन यार. ऐसी डाइकोटमी का एक्सपेक्टेशन रखना है स्टूपिडिटी. सो बेडरूम हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट, you want to become parents, you don't want to become parents. If you want to become parents, how? What are the things that you want to do? बच्चों को कहाँ रखना है, कैसे पैदा करना है, कैसे बड़ा करना है. करियर. सी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी ना, फीमेल्स डोंट, दे आर नॉट गिवन अपॉर्चुनिटीज टू हैव अ करियर. वो गला घोट दिया जाता है जस्ट बिकॉज शी हैज़ टू बिकम अ मदर, शी हैज़ टू रेज अ चाइल्ड. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी लड़की पे चली जाती है, जो बहुत ही गलत है. यू शुड टॉक अबाउट दैट. Few things that you need to talk about. These are the few 5-6 things that you should do. And
कांट बी ब्लंट अबाउट इट. उसके बारे में थोड़ा डिप्लोमेटिकली पूछना चाहिए. व्हाट इज़ नेसेसरी, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी. इट्स लाइक दो लोग अगर एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, ये तो बेसिक है, आपको पूछना ही पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आस्क दैट दिस इज व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी. आई थिंक जब आप ये बात बोल रहे थे ना, तो आप सवाल, अपने दिमाग में सवाल चल रहे थे. या मेरे जहन में एक्चुअली एक बात आई कि जो हमारे 7 फेरे हैं, एक्चुअल में हमें उन 7 फेरों को थोड़ा सा इन सवालों से बदल देना चाहिए. बिल्कुल. rather than saying क्या आप मेरे माँ बाप की इज्जत करेंगी या नहीं करेंगी, हाँ या ना का जवाब मांगने की बजाय अगर हम ऐसे सवाल पूछें, तो मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन चूज़ कर रही है ना शादी ना करना या बिलीव नहीं कर रही है, बिकॉज वो आज भी देख रही है कि हम सब फंसे हुए हैं पुरानी चीज़ों में, हम निकलना ही नहीं चाह रहे हैं. सो थैंक यू फॉर सेइंग दैट, थैंक यू फॉर चेंजिंग the meaning of right communication before getting married. But another thing that I want to ask, because you were talking about bedroom habits, do you think कि औरतें अभी भी शर्माती हैं अपनी नीड्स बताने में, चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड हो? अगर आदमी का ख्वाब है कि उसकी पत्नी सनी लियोनी बने, तो आई एम श्योर बीवी का भी हो सकता है, मेरा पति भी डैन बिल्जेरियन बने फिर, राइट? कुछ भी नीड्स हो सकती हैं इफ वी आर ट्रीटिंग देम इक्वल. आपको लगता है कि आज भी औरतें शर्माती हैं बताते हुए कि ये मेरी ज़रूरत है? यस, एब्सोल्युटली. एंड व्हाई डू यू थिंक सो? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. औरतें बिल्कुल शर्माती है. आई मीन टू टॉक अबाउट इट. इफ यू हैविंग सेक्स विद अ गाय, द गाय विल कम फास्ट. हाउ मेनी टाइम्स डज द गर्ल्स गो एंड से कि हेलो, व्हाट अबाउट मी? आदमी को तो पता ही नहीं होता कि औरतों को भी ये रिक्वायरमेंट है that she also comes. They don't ask. Now the problem with women is that society ने ऐसा बनाया है कि she cannot express her sexuality. Again, a mythological example, Draupadi. Draupadi was one of the most powerful characters. Powerful. And I've said this multiple places in the entire Mahabharata. Yeah. अगर आपको कोई एकदम पावरफुल कैरेक्टर दिखता है अदर देन लॉर्ड कृष्णा, वो द्रौपदी है. She is the embodiment of an Indian woman. Yeah. She is with 5 men. She has her wants, she has her needs. She is communicating it. But जैसे वो communicate करती है, उसको मिलता नहीं है. She is judged by society. I mean, you pick up lust stories. Yeah. I mean, if the moment a woman says कि you know what, मुझे ये चाहिए, तो usually men being men, they will either become so insecure. Why is she asking these things to me? Maybe, I mean, am I not satisfying her enough? But guy, it is okay ना, if she is asking you, you should allow her that. लड़कियों को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, they are scared that their partners will judge them. Their partners will judge them by thinking that ये शायद she is weird, she has got some weird habits. Yeah. That is why bedroom habits are very necessary. She's been sleeping with many men. Yes, maybe she has more experience than me. Yeah. And I don't have enough experience. Men are very insecure when it comes to these things. But again, I blame the society, because you expect a parent to teach sex to the child. What is the sexual education that a parent gives to a child? Good touch, bad touch, what is supposed to be done, these are your private parts, this is hygiene, खत्म. उसके बाद nothing. अब ये हमारे जो मैकॉली साहब हैं, उन्होंने हमें एजुकेशन सिस्टम की बर्बाद कर दिया. बट प्रायर टू दैट हमारा सिस्टम बहुत अच्छा था. Every single god, goddess that you see in a temple, she or he is embracing each other. Yeah. In a particular manner. They're in love, they're showcasing their love. And it is so openly spoken about. पर उसकी डिस्कशन हम जब तक करेंगे नहीं, होगा कैसे? अब, when it comes to female expression of sexuality, I feel that couples need to really talk about हमें चाहिए क्या? Exactly. In the bed, मुझे क्या चाहिए? A guy should also say ki what I need in the bed. Yeah. We say, I mean, just if you just blindly ask this question to women, what is that sexual part of a man that he loves to get titillated? So uska jawab usually dick hoga. Yeah. Penis. But that's not the reality. They have erogenous zone everywhere. But a female is scared to ask a man. So what will she do? She'll just make sure that he's happy. He's happy. Foreplay? No foreplay. What is foreplay? This doesn't exist. This leads to dissatisfaction. The moment dissatisfaction हो जाता है, then किसी ने अगर आपको Instagram पे DM में hi भेजा, you're so pretty, Yeah. then you suddenly feel that wow, my husband तो doesn't look at me. Yeah.
he finds me pretty. Maybe he will give me what my husband is not giving. That is how usually things open up. करना क्या है? कुछ नहीं. हस्बैंड से बात करनी है या हस्बैंड को वाइफ से बात करनी है. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द वाइफ, आई एम ब्लेमिंग द हस्बैंड ऑल्सो. हस्बैंड ऑल्सो से कि नो व्हाट डू यू नीड, हाउ कैन आई मेक यू हैप्पी. Exactly. Or do I just say कि take off your clothes, switch off the light, let's just. It's Yeah. stupidity. Exactly. But that is how it happens. That is in my intimacy coaching classes. That's why I talk to couples saying that, have you spoken to each other? Do you even know what makes him feel good? Yeah. You know, while you were talking about this, I'm going to take out my phone and I'm going to read out one quote for sure. And I was going through it a few days ago and I love that. And जो आप बात कर रहे हैं ना, it syncs so much with what you've said. And I would want you to explain this entire quote to our audience in a better way so that we also get to know कि आप कैसे कोच करते हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कपल्स को कि इस बारे में कम्युनिकेशन कैसे किया जाए. क्योंकि सब एक दूसरे को सिर्फ ये बोलते हैं कम्युनिकेट, बट कम्युनिकेट करें कैसे, वो वक्त कैसे निकालें कि हम बोलें कि आज हम इस बारे में बात करेंगे. Like it feels so weird, no, that you're gonna tell your husband or tell your wife that, hey, today we're gonna tell each other ki, what do you like? How do you want me to touch? Right? So I'm gonna definitely take my phone out and gonna read this out for you. So the quote says that intimacy in a marriage doesn't start in the bedroom. It starts with greeting each other with warmth, not indifference, putting your phones away and really listening, responding supportively to their emotional state, touching as you walk, flirting and being playful, not always serious, checking in on each other while communicating, making each other feel wanted, not just needed. Remember, emotional intimacy is foreplay for physical intimacy. What do you Brilliant. think about that? I feel it's amazingly perfect. So this is what will change your marriage from a 5-year arrangement to probably a diamond jubilee one. Whoa. For any man or woman, if this is what you're going to be doing for your wedding, शादी में अगर ये कर लोगे तो फिर और कुछ चाहिए ही नहीं. इसका अगर सिंप्लीफाइड वर्जन अगर आप समझें तो हम जब शादी करते हैं तो इनिशियली हम इसको हनीमून फेज कहते हैं, बिकॉज हमारा सब कुछ हमें सब पसंद है दूसरे के बारे में. तो बाबू सोना फेज हो गया ना वो, तो कि हाँ उन्होंने किया ये किया, ना पति को एकदम परमेश्वर की तरह देखते हैं, जो उन्होंने कहा वो कहा, सही कहा. फिर बाद में धीरे धीरे फ्लॉज आने लगती है. होता क्या है, वी फॉरगेट कि आपका पति अकेला नहीं, वो एक लड़का भी है. एंड पति ये भूल जाते हैं कि वो उनकी बीवी अकेली नहीं है, पत्नी अकेली नहीं है, बट शी इज़ अ गर्ल टू. गर्ल लाइक्स टू बी केप्ट हैप्पी, विमेन लाइक टू बी आस्क्ड कि सब ठीक चल रहा है, कैसे हो. ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कर लो तो बेहतरीन है. अब आप काम करते हो, आपका 9 to 6 जॉब है या 9 to 7 जॉब है, मेट्रोज़ में जाते हो, ट्रैवल इतना ज़्यादा वक्त हो जाता है, तो क्या चाहिए व्हेन यू कम बैक, इफ़ यू सिटिंग अक्रॉस द टेबल फॉर डाइनिंग, उस टाइम फ़ोन का इस्तेमाल मत करो. जस्ट गिव दैट 15 minutes 30 minutes टू ईच अदर टू टॉक अबाउट द डे. आस्क हाउ शी इज़, शी कैन आस्क हाउ ही इज़. ओके, ये एक प्रैक्टिस. दूसरा, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सेक्स एवरी डे. Yeah. It is not a compulsion. But if your wife or husband needs it, help her, help him. There are ways to help without actually doing it. Yeah. Be open to talk about it. Next, एक fundamentally essential चीज़ है, आप अगर सो रहे हैं तो ensure करें कि आपके आसपास डिजिटल डिवाइसेस ना हो. When you're sleeping, do not sleep with the phone on. I mean, unless and until you have a job जहाँ पे रात को इमरजेंसी में कॉल आने वाली है आपको. I don't think except Ajit Doval and few national security advisors people have that problem. So don't do that. Phones दूर रखें. सो रहे हैं तो साथ में सोएं. कुछ practices अगर आप रेगुलरली करेंगे तो हो जाएगा. Set a date where you can actually take your husband or wife out for actually a candlelit dinner. See, problem क्या है, हमें शर्म आती है. बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो हम रोमांस भूल जाते हैं. अरे नहीं मतलब मैं तुम्हारी मम्मी के साथ रोमांस कैसे कर सकता हूँ. I mean, dad या mom, we are not asking you to just go bang, kiss, bang, but love is there, na? Love can be expressed. It is not necessary to always, kiss each other, have Titanic poses outside a cruise ship. Love is basic. Love is general. And कौन सा ऐसा इंसान है जिसको हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता? We love to be comforted, यार. Social animals है, हम सबको पसंद है. So everyone likes a hug. Hug your wife, hug your husband once in a blue moon. हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, बेसिक भूल जाते हैं.
बाकी सब पे ध्यान देते हैं. उसको एनिवर्सरी है तो आईफोन गिफ्ट करना है, बर्थडे है तो महंगी से महंगी चीज़ें खरीद के देनी है. क्या करेगी उस आईफोन का अगर आपका पति ही आपसे बात नहीं करेगा? बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट. तो या एंड जब आप ये बात बोल रहे थे ना कि अपने फ़ोन्स हैं उनको थोड़ा दूर रख के सोइएगा, पहले मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आता था, बट एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दैट पर्सन एक्चुअली मेड मी रियलाइज दैट इसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है. जब राइट में आपका फ़ोन आपको नहीं दिखेगा तो जो लेफ्ट में आपके पास लेटी हुई है या लेटा हुआ है, आप सबसे पहले उसी को देखोगे और उसी के लिए ग्रेटफुल होगे कि ये मेरी ज़िंदगी में है. Right, and it's so important to have Very this true. feeling. Very true. Right, and I love that. But like I said, we all are social animals, and we love updating our social media platforms, and we feel that अरे अगर ये 1 मिनट मिस हो गया तो कैसे काम चलेगा, right? लेकिन मेरा अब जो आपसे अगला फॉलो अप क्वेश्चन है, इतना लाइफ में प्यार होने के बाद, अपने पार्टनर को हर रोज़ ये बोलने के बाद दैट आई लव यू, व्हाई डू पीपल स्टिल चीट? चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो. एसेंशियली पीपल चीट बिकॉज उनके पास जिंदगी में वो नहीं है जो उन्हें चाहिए. एंड आई गिव अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल. इट्स चीटिंग इन योर रिलेशनशिप इज वेरी मच सिमिलर टू चीटिंग ऑन योर डाइट. आई माइट साउंड वेरी क्रैश बट हकीकत वही है. आपको सडनली यू हैव द फीलिंग कि आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है, आपको कीटो डाइट पे जाना है, बट सडनली आपके अंदर एक क्रेविंग है कि मुझे कार्ब्स चाहिए, आई वांट टू हैव अ शुगर समथिंग. यू हैव इट, यू चीट. व्हाई डू यू चीट? बिकॉज यू हैव अ क्रेविंग. सो जो आपको आपकी रिलेशनशिप में मिल नहीं रही है वो आप बाहर ढूंढते हैं. दैट इज एज बेसिक एज दैट. बट जब आप इमोशनली चीट करते हैं या फिजिकली चीट करते हैं, उस चीज़ का बहुत बड़ा एक हवा बन जाता है. ओ गुड लॉर्ड, गिल्ट, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट. बट इफ यू चीट ऑन योर डाइट, डू यू फील बैड? नो, यू विल नॉट. यू विल एक्चुअली गो टू योर वाइफ और हस्बैंड एंड से कि यू नो व्हाट यार, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई एंडेड अप हैविंग अ चीट डाइट. It's as basic, as simple as that. I feel that cheating is becoming more and more because our expectations are getting higher and higher. Our communication is getting lower and lower. And we are not able to tell कि मुझे actually चाहिए क्या, मुझे आपसे क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैंने शनाया आपसे कहा मुझे कॉफ़ी चाहिए. मैंने कहा नहीं होता और मेरे को आपने चाय दे दी होती. आई लव चाय, बट आपने चाय दी तो मैं पीता. बट आई लाइक काश मुझे चाय नहीं कॉफ़ी मिल गई होती. तो डिफरेंस इज व्हाट आई टोल्ड शनाया मुझे ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर चाहिए, एंड गॉट मी दैट. आई एम हैप्पी नाउ. दैट इज चीटिंग. दैट इज व्हाई पीपल चीट. शर्म आती है बोलने में. विमेन, मेन, बोथ ऑफ देम. कई बार आपको नहीं लगता है कि ये आदत का पार्ट भी हो सकता है? आदत बाद में बनती है. Habitual cheating is something which happens later on because you become used to it. You say one thing, you do something else. आपको आदत लग जाती है कि हाँ मैं सबके सामने दिखूँ कि I'm an ideal husband, I'm an ideal wife, while I can cheat, can indulge in whatever fantasies I have, you know. I can do anything and everything hidden behind the door so that किसी को पता नहीं चले कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ. And that gives you a kick. I call it the dose hormones, the dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin, the dose hormones. आपको dopamine kick मिलता है. In fact, you get high. You're just waiting for your husband to sleep, and then suddenly when he's snoring, you know when your husband snores. The moment he starts snoring, you just pick up your phone and you just send a DM to that boy of yours who can sext with you. Because you have that need which gives you high. This can be after you've had sex with your husband. Wow. Yeah, because you get a high. You know, there are people who essentially break law because उनको मजा आता है, kick मिलता है. It can be for that kick also. So these habitual cheaters, they need help. So as a fair coach, if at all I find an habitual cheater, I'm telling him, showing the mirror, उनको आईना दिखाता हूँ, देखो सर ये आपके साथ हो रहा है. You want help? If they say yes, then we help them get into rehabilitation from this habit. There are sex addicts, people who just want to have sex. There are kink addicts, there are fetish addicts. There are multiple kinds of people. Point is कि you should be aware कि हो रहा है. It starts with छोटा सा, but then gradually it builds a habit. But not for everyone. सबके साथ नहीं होता ये, but कुछ के साथ होता है. Since you just mentioned like ऐसा भी हो सकता है कि you just had
sex with your partner, and tab bhi, you are still waiting for him to sleep and picking up your phone and messaging him. इसी के साथ मेरा एक मतलब हो सकता है रिलेटेड भी हो और हो सकता है ना भी रिलेटेड हो. क्या आपको लगता है सेक्स के बाद भी वो जो इसको फोरप्ले तो नहीं बोल पाएंगे बट एक वो जो वार्मथ वाली जो फीलिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? इट्स नॉट लाइक ओके यू आर डन, आई एम डन, ओके बाय. It should not be like that, right? No. So how important is that communication? There is a science behind it. ये एक्चुअली बहुत बहुत important science है जो हमारी I mean the book is very famous, right? Kama Sutra. Yeah. इसमें बहुत clearly mentioned है, black and white में लिखा हुआ है. जितना लोग भगवत गीता को कोट करते हैं उतना ही मुझे लगता है कामा सूत्र के शास्त्रों को कोट करना चाहिए. रीज़न ये है कि इट्स वेरी क्लियर. आपने संभोग करने से पहले फोरप्ले किया, फिर संभोग किया, उसके बाद देयर आर थिंग्स दैट यू हैव टू डू फॉर योर पार्टनर. होल्ड द पार्टनर, कडल करें उनको पकड़े, उनको आराम से सुलाएं, उनके साथ सोए. इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर से संभोग करना है, यू हैव टू डू इट अगेन. नहीं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जस्ट होल्ड देम. सो इट हैज़ टू बी डन. और ये प्रक्रिया सबके लिए अलग अलग है. कुछ लोगों को ऐसा अच्छा लगता है कि होने के बाद देन हस्बैंड होल्ड्स द वाइफ फ्रॉम बिहाइंड and they put the wife to sleep. Sometimes the man also likes to be cradled in the bosom. Yeah. So सबका अलग अलग है, but हाँ, it is a proper science. जितना ही foreplay important है, उसके बाद उतना ही after play भी important है. Foreplay, संभोग, after play, it is a proper science. खाना खाने बैठे हैं तो स्टार्टर भी होता है, एपेटाइजर्स है, मेन कोर्स है, डेजर्ट है. आप सिर्फ डेजर्ट खा के तो कह नहीं अरे मेरा पेट भर गया, व्हाट एन अमेजिंग फूड आई हैड टुडे, मैंने गाजर का हलवा 1.5 किलो खा लिया. डजंट वर्क लाइक दैट. Absolutely. I love your examples. I mean, it's so easy to understand and it's easy to put out in your thought and in your vision. So thank you for saying that. But don't you think that people should actually leave their partner अगर मतलब why do they even choose to cheat? पहले वाले को बोलो कि भाई मेरे साथ आपका नहीं हो पा रहा है and I'm going, rather than putting the third person in a situation where she or he, I'm not only talking from a woman per se, but it can be anyone. इससे अच्छा है कि आप उन्हें बताएं कि this is not working out, you please let her live her life and you go live your life. Why do you want this? So हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी को ना आइडियल सिचुएशंस बहुत पसंद है. आप जो कह रही हैं वो आइडियल है, आइडियल यही होना चाहिए, बट ऐसा करना बहुत मुश्किल है. इट इज़ वेरी हार्ड बिकॉज आपको खुद को ही नहीं पता कि आपने चीटिंग क्यों की है. आर यू इमोशनली कनेक्टेड टू समवन या आप फिजिकल इंटीमेसी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. चीटिंग जो होती है ना, अमूमन हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल चीटिंग ही होती है ज़्यादा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद इमोशनल इंटीमेसी. अब इमोशनल इंटीमेसी जो आपको आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर से नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए बाहर जा रहे हैं, अब आप सेटिस्फाइड हैं, वापस आ रहे हैं, आप दोनों चाहते हैं अपने साथ रहे. अभी 2 नाव में सवार नहीं हो सकते. हम अजय देवगन जैसे स्प्लिट करके 2 बाइक्स पे बैठ के घूम नहीं सकते. ये चीज़ समझने में थोड़ा वक्त लगता है. आइडियल सिचुएशन होता, दोनों को इक्वली बता दिया जाता कि आई एम नॉट गोना बी, मैं खुश नहीं हूँ इस रिलेशनशिप से, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ या बाहर निकलना चाहता हूँ, और निकल जाएं आप. बट इट इज़ नॉट सो ईजी ना. फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है. आपकी सोसाइटी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगी ना. यू आर अ डिवोर्सी हस्बैंड, यू आर अ डिवोर्सी वाइफ. यहाँ पे तो विधवाओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इट्स सो सैड. यू आर अ विडोवर और अ विडो, सोसाइटी आपको उसमें भी जज करेगी. क्या करता है, क्या करती है, मापदंड ही सोसाइटी कैसे हैं. अब जैसे इंद्र ने अहिल्या के साथ चीट किया था. ही स्क्रूड अहिल्या बाय शोइंग दैट अहिल्या के जो पति हैं वो इंद्र है. ठीक है, उसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा. अहिल्या टर्न टू स्टोन, इंद्र वॉज ऑल्सो कर्स्ड. तो चीटिंग में दोनों पार्टनर्स गेट स्क्रूड. इफ अ हस्बैंड इज चीटिंग हिज वाइफ, it is not that only the husband is gonna be bearing the brunt. Wife will also. Why? She'll get shattered ना. उसका trust का क्या होगा? Exactly. She trusts her husband blindly. Yeah. Husband is coming and saying that, hey, I'm not happy, I fell in love. She'll be like, what is wrong with me? Why do you not love me? मेरे में क्या कमी है? दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ता है. तो ये कहना कि हाँ go and tell, not so easy. Circumstantial है, सोच समझ के take professional help. That is where people like me come in. We help. We tell. There is a scientific way to tell this.
Yeah. उसका इस्तेमाल करें. पहले ये भी देखें कि एक्चुअली आपको ये चाहिए. पता चला यू लेफ्ट योर वाइफ फॉर समवन एल्स एंड सडनली अरे नहीं मेरे को तो उसी से प्यार था, ये तो मोमेंटरी था, तब क्या करोगे? यू विल बी स्क्रूड. डिप्रेशन, एंजाइटी. And I think astrologically also, जिसको हम दंड बोलते हैं, I was, because I'm into astrology and all that, I really love reading about this and I was going through that, कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे चीट करता है तो उसका जो वीनस है वो नीचे आना शुरू हो जाता है. एंड देन यू जस्ट गेट टू नो कि इसकी लाइफ में इतने लॉसेस आने शुरू हो गए बिकॉज उसने, हम बोलते हैं कि औरत जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, आपने उस लक्ष्मी को ही चीट कर दिया तो आपके पास क्या बचा. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट हाउ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आपका एक बीइंग है यहाँ पर और आपने शादी कर ली किसी से एंड देन यू आर जस्ट थिंकिंग दैट हु इज इवन लुकिंग एट मी, आई एम गोना गो चीट फॉर हाउ मेनी ईयर्स आई वांट. बट आई फील दैट वो कहीं ना कहीं से बाहर निकल कर आ जाता है, पता लग जाता है आप कितना छुपाओगे आप, राइट? सो इसी के साथ साथ बिकॉज इस चीज़ से अब लोग जान चुके हैं कि छुपा तो सकते नहीं है, अब एक कॉन्सेप्ट आ गया ओपन मैरिज का, राइट? अब छुपा नहीं सकते तो खुले में कर लेते हैं. तो आप क्या समझते हैं ओपन मैरिज के बारे में, और ऐसे कितने लोग आते हैं जो इस बारे में ओपनली बात करते हैं, एंड व्हाई डू यू थिंक एज अ प्रोफेशनल इट्स हैपनिंग? ओपन मैरिज एज अ टर्म इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज अ मैरिज विच इज ओपन. अर्थ दोनों पार्टनर्स को अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इंटीमेसी का जो फीलिंग है किसी और के साथ एक्सप्लोर करें, प्लस वापस अपने ही पार्टनर्स के पास आए और सोसाइटी के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें कि हम एक सक्सेसफुल मैरिड कपल है, यानी हम एक दाम्पत्य जो हमारा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है. ओपन मैरिजेस इवन दो वो ओपन है, सीक्रेटिव होते हैं बिकॉज कपल को यूजुअली उन्हीं को पता होता है या उनके एकदम करीबी लोगों को पता होता है कि दे आर एक्चुअली इन अ ओपन मैरिज. अब मेरे पास जितने ओपन कपल्स आए हैं उसके अंदर कोई एक इंस्टिगेटर होता है, इन द सेंस किसी ने इनिशिएटिव लिया होता है. ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आपने उठाया, हस्बैंड एंड वाइफ बैठ के कॉफी पी रहे हैं, लाइक ए डूड ओपन मैरिज करें, हाँ चलो लेट्स डू इट. इट्स नॉट अ थाईलैंड का वेकेशन दैट यू आर गोइंग फॉर, राइट? तो इट टेक्स टाइम एंड यूजुअली एक इनिशिएटर होता है. अब वो इनिशिएटर इनिशिएट करता है और वो लेके आता है इंटीमेसी का फीचर. अब हमें इतना इंटीमेसी मिल नहीं रहा है, हमें अब इसको स्पाइस अप करना चाहिए. अब इस स्पाइस अप करने के चक्कर में कैसे करें स्पाइस अप? तो रोल प्लेइंग आ जाती है. अब रोल प्लेइंग के अंदर धीरे धीरे वो पार्टनर ये आइडिया लेके आता है, हम करें ये, हम लोग बाहर क्लब्स में जाएं, लेट अस स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स. एंड जब वो अदर्स के साथ टाइम स्पेंड करके जब अपने साथ आते हैं तब उनकी इंटीमेसी के मोमेंट्स और अच्छे आते हैं, चरम सीमा बढ़ जाती है उसकी. सो ये एक इनिशिएशन का तरीका होता है. मेट्रोज में जो मैंने देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ के पास वक्त ही नहीं होता है, दे आर सो बिजी, मंडे टू सैटरडे दे बिजी, अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तुम कब मिल रहे हो? हस्बैंड जॉब से वापस आया, वाइफ सो गई है. वाइफ इज एन अर्ली राइजर, शी गोज टू हर जिम, हस्बैंड उठा, वाइफ को दिखा नहीं, ही गेट्स रेडी, गोज टू प्ले पिकल बॉल. It's a very big sport, na, pickleball. So he goes to play pickleball while she is out doing yoga. Yeah. वो आई वापस, she doesn't meet the husband, she goes to work, he comes back tired after playing pickleball and then उसके बाद he has breakfast, he goes. वाइफ क्या करती है, हस्बैंड क्या करता है? कभी कभी तो हस्बैंड ऑल्सो फाइंड्स व्हाट अ वाइफ इज डूइंग थ्रू इंस्टाग्राम पोस्ट्स. ही इज पुटिंग हार्ट, ही लाइक अरे बेबी लुकिंग सो गुड, दैट इज अ रियलिटी. ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद हिज वाइफ. संडेज को मिलते हैं. अब संडेज को कितना अकेले वक्त बिताते हैं? बहुत कम. कपल्स को आदत पड़ जाती है हम एक दूसरे के साथ अकेले नहीं बैठ सकते. जस्ट इमेजिन यू एंड मी आर अ कपल, वी विल नॉट बी एबल टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर अलोन, वी वुड नीड अदर्स. हमें एक हैंडीकैप हो जाता है. वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू बी देयर सो दैट यू एंड मी कैन टॉक. क्यों? हम एक दूसरे की बात नहीं करते, हम दूसरों की बुराइयां करते हैं. हमें उसकी आदत लग जाती है. ये सारी आदतें एंड अप इन इमोशनल इंटीमेसी गोइंग डाउन. इमोशनल इंटीमेसी निकल जाता है, फिजिकल इंटीमेसी गायब हो जाती है. देन यू स्टार्ट लुकिंग आउट अदर साइड. दिस इज व्हाट हैपेंस विद ओपन मैरिजेस. इज इट बैड? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं. इट्स गुड थिंग. व्हाई? यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लोर आपको क्या पसंद है. लिव इन वॉज ओके, राइट? सो लिव इन जैसा ही है, बट ओपन मैरिजेस शुड लीड टू समथिंग. इट इज नॉट अ पेरेनियल एंगेजमेंट. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, गुड यू आर एन ओपन मैरिज, आगे क्या? एग्जैक्टली.
2 साल 3 साल 4 साल बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों के लिए भी शादी रखते हैं ना, टिल द टाइम द चाइल्ड इज बिग इनफ सो दैट यू कैन सिट द चाइल्ड एंड से कि यू नो व्हाट बेटा, मम्मी एंड पापा आर नॉट इन लव एनी मोर, वी लाइक डिफरेंट थिंग्स, मम्मी लाइक्स men, papa likes men too. It can be anything. Yeah. But you should be able to talk, right? So till the time that is there, तो open marriages perennial नहीं है. Open marriage की एक सीमा है, आपको डिसाइड करना है कब तक, और वो कम्युनिकेट करके जब हो जाए निकल जाना है. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इंडिया में बहुत बहुत चल रहा है, थ्रपल. Oh yes, 3 people being in Yes. love. Oh. Thruple is amazing. It works for a lot of people. Okay, I really have 2 amazing thruples who are clients of mine. They are really in love with each other. Wow. So it is okay. So कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप के डायनामिक्स ना बहुत चेंज हो रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज वी शुड बी ओपन टू टॉक. Yeah. जितना आप बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन लिया जाएगा, करा जाएगा, तो देयर इज अ प्रॉपर एंड टू इट. आपको लगता है कि पहले भी इतनी चीटिंग होती थी या आज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है? पहले इतनी चीटिंग होती थी. आज अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. पहले चीटिंग होती थी, पता नहीं चलता था. पहले पतिदेव हमारे सेल्स के लिए अलग अलग शहरों में जाते थे, फ़ोन होते नहीं थे, इंस्टाग्राम होते नहीं थे, वो कहाँ रह रहे, क्या कर रहे, क्या पता. ही इज़ अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़. वाइफ इज़ अलोन एट होम, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़. आजकल पता चल जाता है. अपॉर्चुनिटीज़ कम है नहीं, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ रही है. इट इज़ गेटिंग, एज आई सेड, जो हमारा दूरभाष यंत्र है, जो फोन दैट वी हैव, इट इज़ एन अमेजिंग गैजेट. इट अलाउज यू टू चीट सो मच. Hinge, Tinder, Badoo, these are old probably. Gleaden, now they have specialized AI dating apps which will collate your social media profile to someone else with whom you can cheat. Yeah. And this is not news, this is reality. There are apps जो आपको cheat करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, वन नाइट स्टैंड्स की अपॉर्चुनिटी देते हैं. यूर ट्रैवलिंग सेल्समैन, यूर गोइंग टू सिंगापुर, वन नाइट स्टैंड चाहिए, गो ऑन दिस ऐप, यू विल हैव समवन हु वांट्स टू हैव एन वन नाइट स्टैंड. प्रोफाइल मैच हुआ, हैव वन नाइट स्टैंड, ओवर. दिस लीड्स टू हैबिट क्रिएशन. दिस इज बैड. दिस आई कंडोन, क्लियरली स्टेटिंग दैट ये एक बुरी चीज है. Yeah. एज अ कोच आई वुड ऑलवेज से कि जो भी आपका हैबिचुअल हो जाता है ना, उतना अच्छा नहीं है, एडिक्ट हो जाओगे आप. बट आपको लगता है कि चीटिंग, जैसे हम इतनी देर से इंटीमेसी के बारे में बात कर रहे हैं, इज इट ओनली अबाउट इंटीमेसी और इट्स अबाउट वैलिडेशन? क्योंकि आपको वैलिडेशन नहीं मिलता इसीलिए यू आर चीटिंग. चाहे फिर उसको आप बोलें कि आप इमोशनल नीड्स के लिए आप दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि चलो यार मेरा वाला नहीं बोलता तो कोई और तो बोल ही रहा है ना. सो एंड समटाइम्स यू योरसेल्फ डोंट इवन नो दैट यू आर गेटिंग इनटू दिस बिकॉज यू आर फीलिंग सो हैप्पी, you're feeling so appreciated that you don't even realize that I'm doing something wrong, but it is labeled as cheating. So I want to ask you, is it only about intimacy or it's about validation? So मेरी ना बहुत टांग खींची जाती है, बिकॉज मैं 2-3 पॉडकास्ट पे ऐसा कह चुका हूँ. मैं जब भी किसी हाउस पार्टी में जाता हूँ, मेरे दोस्त मेरी ही टांग खींच रहे होते हैं. लाइक मैं ना उससे बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त से, मैं चीटिंग कर रहा हूँ क्या? सो विल दिस लीड टू मी दैट? एंड इट्स अ जोक, बट देन आई टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज मैं ये कहता हूँ, आप जो चीज़ अपनी वाइफ को नहीं बता सकते और वो आप छुपा के किसी और को बता रहे हो, इसलिए बता रहे हो बिकॉज आपकी वाइफ के अंदर कैपेसिटी नहीं वो समझने की, तो एक तरीके से तो चीटिंग हुआ ना. गलत कैसे हुआ? अमन, इसको ये कहना कि मैं सिर्फ उसके बारे में इसी से बात कर सकता हूँ, तो तुम्हें बीवी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पति की ज़रूरत नहीं है. सी फंडामेंटली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनाया है इसके लिए कि बिकॉज आपके सारी की सारी जो नीड्स है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सेम पर्सन. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट. इट इज़ नॉट. बट अटेम्प्ट तो करें. सी एज आई सेड, लेट्स इमेजिन वी आर अ कपल. आई कैन टेल दिस टू यू, मुझे F1 रेसिंग बहुत पसंद है. यू डोंट अंडरस्टैंड F1 ऑल्सो. आई विल से, यू नो व्हाट, लैंडो नॉरिस won this year's championship. Like, okay, who Lando, who Norris, I don't care. But at least I'm telling this to you. Then I go to my friend who is an F1 aficionado. He may be a boy, she may be a girl. But मैं उससे साथ शेयर कर रहा हूँ. We have fun, we have drinks. But at least you know, right? Yeah. You are aware. But यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं चलता है. I go to golf. I love having a cigar after I play golf. My wife doesn't even know that I smoke. That is not acceptable. So I feel that is essentially what gives the entire structure to this. ये सब मेरा मानना है.
अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ कपल्स की कि चलो एक ने एक को बताया कि नहीं बताया, ये चीटिंग हुई कि नहीं हुई. क्या चीटिंग पेरेंट्स और पार्टनर के बीच में भी हो सकती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैरिड एंड लेट्स से माई पेरेंट्स, they are aware about everything what's happening in my house. But my husband, he thinks that it's between him and I. क्या वो भी एक चीटिंग का पार्ट हो सकती है? 110%. Till the time you are not in an abusive relationship, if you can't share and if you want things that are there between your husband and wife, private things to be shared to your parents, it will lead to your downfall. शादी में I have seen marriages going defunct, टूट जाते हैं. होता क्या है, बेटी है, parents are very attached to the daughter. She is sharing everything that is happening to her life, in her life, to her father and mother, thinking that mom papa should know na. Husband is telling his wife these things because private hai, because we are together na, we are a unit, I trust you in that. One fine day husband and like parents come down, sit down across the table, dinner कर रहे हैं, and पापा is like, यार तुमने यार वो शेयर में तुमने बड़ा गंदा इन्वेस्ट किया यार, तुम्हें करना ही चाहिए. हस्बैंड लाइक, मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया? How the hell do they know? Exactly. Trust broken. The moment that trust is broken, यार प्रॉब्लम क्या है पता है? ट्रस्ट को टूटना बड़ा आसान है, उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट टेक्स टाइम, बट उतने एफर्ट्स आजकल कोई डालता नहीं है. वी आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन, तो बहुत मुश्किल है. सो दिस इज चीटिंग. I think it doesn't, like when we were talking about trust को rebuild करना बहुत मुश्किल होता है. I personally feel कि सेम शेप में कभी नहीं आता ट्रस्ट. नहीं आता है, कभी नहीं आता है. कोई ना कोई पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करता ही है ना. someone has to compromise because they are looking at the larger good कि मुझे रिलेशनशिप चलानी है तो मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ या करती हूँ. Exactly. थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है. Yeah. रीबिल्ड हो सकता है, तोड़ना तो ऐसा है, so easy, break like anything, but rebuilding takes lot of time, lot of energy. You know, since we were talking about कि कितना ज़रूरी है शादी से पहले एज अ कपल कम्युनिकेट करना, क्या उतना ही ज़रूरी है अपने इन-लॉज से भी अपनी बाउंड्रीज को पहले से ही सेट करना? बहुत अच्छा सवाल है. एंड बाउंड्रीज जिंदगी में हर रिलेशनशिप में ज़रूरी है. आप अपने दोस्तों के साथ कितनी बाउंड्रीज रखते हैं, आपके फ्रेंड्स के सिवाय अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं. तो इन लॉज के साथ बाउंड्रीज क्लैरिटी के साथ रखना बहुत ज़रूरी है. एक इकलौता रिलेशनशिप जहाँ पे बाउंड्री की रिक्वायरमेंट नहीं है वो है हस्बैंड एंड वाइफ. आप एक है, लिटरल सेंस में आप एक यूनिट है. ठीक है, वन इज द राइट हैंड, वन इज द लेफ्ट हैंड. द राइट एंड लेफ्ट हैंड डू हैव नो बाउंड्रीज, राइट? इफ आई एम itchy, I'll itch like this. If my right hand is busy, my left hand will itch like this. The only relationship जहाँ बाउंड्रीज नहीं चाहिए. बाकी एवरीवेयर इट हैज़ टू बी डिफाइंड वेरी वेरी क्लियरली. जो पहला मेरा प्रश्न था, मैंने कहा था ना कि कुछ सवाल है जो हमें पूछने चाहिए. फिनेंस वेरी इंपॉर्टेंट. इन लॉज, फिनेंस, आपको पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए. पापा मम्मी से कितना डिस्कस करना है फिनेंस के बारे में? पापा ही कॉल लेते हैं घर के बारे में सारे, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं पापा ही कॉल लेते हैं घर के अंदर पैसे का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए. क्या आप कंफर्टेबल हैं अपने हस्बैंड के और इस फैमिली से, रिलेशनशिप डायनामिक से? आपको क्लैरिटी लेनी है. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ जो कमाती है उसके पैसे का इन्वेस्टमेंट, निवेश उसके फादर करते हैं. तो हस्बैंड ऑल्सो हैज़ टू अंडरस्टैंड कि यार मैं भी हूँ, I should have a stake too, I should have a say too. I don't need your money, but I should be allowed to at least say कि where to invest. So ये dynamics important इसलिए because आगे जाके कुछ भी प्लस माइनस हुआ, आपके फादर ने आपके पैसे इन्वेस्ट किए, अगर वो डूब गए तो मैं मजाक में भी आपको लूँगा, देख मेरे को दिया तो मैं तो ज़्यादा अच्छे से कर लेता, तुम्हारे पापा पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते. It will hurt you. Was that my intention? No. बड़ा मैं ह्यूमन बीइंग, मुझे बुरा लगा, तुमने मेरे से पूछा नहीं ना, तो मैं भी बदला लूँगा, मैं ये कह दूंगा, मैंने सोचा है मैंने कह दिया, भूल गया. बट आपको जो ठेस लगी ना, हमेशा याद रखोगे. फिर जब मुझसे ये गलती होगी या मेरे परिवार वालों में से किसी से गलती होगी, आप ये चीज़ मुझे बोलोगे, अब ये तू मैं हो जाएगी. मुझे लगेगा आपको मेरे परिवार वाले पसंद नहीं है, आपको लगेगा मुझे आपके परिवार वाले पसंद नहीं है. तो डायनामिक्स क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है. बाउंड्रीज बहुत अच्छे से डिफाइन करने चाहिए. डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए. डू नॉट डू थिंग्स और एक्सेप्ट, कॉम्प्रोमाइज मत करें. नहीं है कंफर्टेबल तो नहीं है, खत्म. एज सिंपल एज दैट. बट कैन आई गिव यू अ रियलिस्टिक सिचुएशन? आई मीन देखो, मैं
ये भी साउंड कर सकती हूँ ये बोल के कि ओ वन मस्ट डू दिस एंड ऑल दैट, अगर लड़की, स्पेशली लड़की की अगर हम बात करें, अगर वो ऐसे सवाल अपने होने वाले पति या हो सकता है उस आदमी को वो पिछले कितने सालों से डेट भी कर रही हो, वो जब भी ये सवाल करेगी ना उसको एक लेबल दिया जाएगा और वो है कि शी इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत तेज़ है ये लड़की, राइट? और तेज होना बुरा है, राइट? हाँ, और तेज़ होना बुरा है। अगर वो तेज़ है और वो ही फॉर एग्जाम्पल आपका फियांसे जाकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है कि यू नो दिस ऑल दीज थिंग्स शी वाज आस्किंग मी, सो वो उसको मेंटली प्रिपेयर करता है। तुझे पता है अब इन सारी चीज़ों को तुझे छुपा के रखना है, अब तुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। उस केस में हमारी जो सोसाइटी है उसने हमें इतना, जिसको आजकल हम सब लड़कियां बड़ी चिढ़ती हैं ना इस अलाउ वर्ड से, आप कौन होते हैं हमें अलाउ करने वाले, है ना? तो पर हमें सच में अलाउ करा ही नहीं गया टू स्पीक, टू टेल दैट दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वांट टू लीड, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई वांट टू डू सर्टेन थिंग्स, बिकॉज वी आर वुमेन एंड आजकल लाइक मेरी फीड पे चल रहा है कि मुझे अब उस फीलिंग में रहना है जहाँ पर मैं अपना खुद का घर बनाऊँ, ना मुझे ये कह पाए जाओ ना मुझे ये कह पाए जाओ। सो इमेजिन कि औरतें कितनी इमोशनल डिस्टेंस के साथ जी रही हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो बनी किसके लिए हैं, क्योंकि ना इधर वाले उसको कबूल कर रहे हैं ना उधर वाले कबूल कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये सवाल तो हम कर लेंगे लेकिन आने वाली लाइफ में तो हमारी वाट लग जाएगी। नहीं लगेगी अगर आप ये सवाल सही वक्त पे करेंगे। देखिए, एक एसेंशियल सवाल है जो पूछना ही चाहिए। अब इमेजिन करते हैं मैं लड़की हूँ, आप लड़के हैं और मैं आपसे शादी करने वाला हूँ और मैं समझना चाहता हूँ कि ये कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं आपसे क्या कहूँगा? मैं ऐसा नहीं पूछूंगा कि कौन करता है, कैसा करता है, सही वक्त का इंतज़ार करूँगा। सो व्हेन आई सेड स्पीक अबाउट फाइनेंस, स्पीक बट डोंट गिव द एंटायर थिंग। यहाँ पे तेज़ बने, इन रियलिटी बी स्मार्ट, से बट इन लिमिटेशन। सी, पहले दिन से ये एक्सपेक्ट करना कि आपके पति और आप एक यूनिट है, जैसा मैंने इससे पहले कहा, वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा ना। जैसे कहीं पे आपने एक सीमेंट का वो लगाया हुआ है, सूखने में, उसको कड़क बनने में वक्त लगता है। सीमेंट में जब पानी डाल के पूरा बनाया है, उसको जब लगा दिया, आप पैर लगाओगे तो छाप बढ़ेगी, बट यही सीमेंट को आप 3 या 4 दिन धूप में सुखाओगे, इतना कड़क हो जाता है कि देयर इज नो मार्क। सो बी स्मार्ट, आस्क बट नो व्हेन टू आस्क, how much to ask. Day one, don't ask. But when your partner trusts you, भरोसा बन जाता है, फिर पूछें, इंश्योर करें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये दिक्कत होती है, बिकॉज इतना सब क्यों करना पड़ रहा है? वाई इज अ वुमन नीडेड टू डू सो मच? क्या करे? द सोसाइटी इज लाइक दैट। इट कैन नॉट एक्सेप्ट पावरफुल वुमेन, इट कैन नेवर एक्सेप्ट वुमेन इन रोल्स ऑफ पावर। हम पूजा करते हैं शक्ति की, हम शक्तिपीठ हमारे इतने सारे हैं, देवी है, गॉडेसेस आर देयर, हम सबकी कुलदेवियाँ हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, लुक एट द क्राइम्स दैट आर कमिटेड अगेंस्ट वुमेन। हमारी जनरेशन, हमारी जो संस्कृति है, इट इज़ सो रिच, फोकस टुवर्ड्स वुमेन। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं है। Changes will come, but it'll take time. So women unfortunately have to be smart. तेज बनना पड़ेगा, but तेज इस तरीके से बनना पड़ेगा कि कब पूछना है, कैसे पूछना है, कितना वक्त देना है, ताकि your question doesn't land you in trouble. Absolutely. So that is essential. So ask. When I said financial प्रश्न पूछे, but be smart. कैसे पूछे, कब पूछे, वक्त का इंतजार करें, फिर पूछे। मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उसमें आपने बहुत ही बोल्ड लाइंस में बोला था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बिग टाइम। आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, पर्सनली आई बिलीव इन दैट। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यस, द रीज़न व्हाई आई फील दैट, बिकॉज जैसे हम बात करते हैं ना कि फलां की सास ने फलां की बहू को ऐसे कर दिया या ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ, है तो वो दोनों औरतें ही ना, वो दोनों ही सेम फेस से निकली हैं, सेम चीजें उन्होंने की है, लेकिन एक दूसरे के लिए सिंपैथी नहीं है, एक दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं है, उनके लिए रिश्ता अपनी औरत होने से भी बड़ा है।
right? So I want to ask you, why have you stated that? Why have I stated that? Because I've seen this happening in so many relationships that रिश्ते तोड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न या इम्पोर्टेंट कारण औरतें ही होती है. जैसे मैंने ये डिस्कशन जो किया था वो चीटिंग के रिलेटेड किया था. जब when someone cheats, अगर वो औरत जाके किसी और औरत को बोलोगी तो सबसे पहले वो जज करना स्टार्ट कर देगी उसको. बट यही चीज़ जाके किसी अपने दोस्त को जो मेल है उसको बोलेगी तो वो जज नहीं करेगा. वो एक इंट्रिंसिक चीज़ है जो मर्दों में है. आई वुड नॉट से इट्स अ ग्रेट थिंग बट इट्स अ गुड थिंग. सो मेन डोंट जज सो मच, विमेन जज अ लॉट. दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज वो जेनेटिकली ऐसा कोड हो गया है कि विमेन स्टार्ट जजिंग अ लॉट. बट द विमेन विल ओनली जज विमेन. दे विल नॉट जज अ मैन. सो इमेजिन आई एम अ मैन, आई हैव चीटेड, आई गो टू माई सिस्टर, ऐसे दीदी है ना मेरे से गलती हो गई. एंड दीदी विल बी लाइक इट्स ओके बेटा चलेगा, आई हैंडल इट, तुमसे क्यों हुआ, कैसा हुआ एंड ऑल दैट स्टफ. स्विच. I'm a girl. I go to my sister. I say, दीदी, you know what? I stepped out of the marriage and मुझसे हो गया. मैं सेल्स कन्वेंशन में गई थी and मेरे कलीग के साथ I slept. She's like, how dare you? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने पति के साथ ऐसा किया? लिंगो ही बदल जाता है. It is like so weird. The problem is, I feel that women they're scared. I would rather use the word. दैट स्केयर ना, डर के वो लोग जिए हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो बिरादरी है वी शुड ऑलवेज बी परफेक्ट. अब उस चक्कर में दे के आर नॉट एट अ स्टेज वेयर दे कैन एक्सेप्ट. एंड मेन आर लकी, हमें तो कभी सही रहना ही नहीं है. मेन कैन डू वट एवर दे वॉन्ट. सो द मेन आर मोर एक्सेप्टिंग दैन विमेन. विमेन आर नॉट. बट नाउ डेज इट बिकम्स अ बिट toxic, because your mother-in-law will not accept what you say, your mother will not accept what you say. You go to your mother and say my husband is bad and she'll be like, तो क्या हुआ, your father was good, तुझे क्या लगता है तेरा बाप अच्छा था, मैंने नहीं झेली, 40 साल से शादी निभा रही हूँ, तो 5 साल नहीं निभा सकती, ऐसे नहीं निभती शादियाँ. This is not how you talk. I mean, that doesn't work. That is why I say that women are really bad to women. And that is the same case in corporate life also. Women are the worst bosses for women to have. You will never see a woman saying, I had such an amazing women boss. It will be always the cross gender. Yeah. Folks. You know, it's so relatable. I'm reading a book, Women Who Love Too Much is the name of the book. And I thought, and it's actually written by a relationship coach. I actually thought that they're going to talk about that this is the way to make your field partner good and all that. But उसमें बिल्कुल opposite है. I love that statement so much. So he says that आप जो भी अपने adulthood में करते हो, जो भी करते हो, everything comes from your childhood trauma. And वो जो childhood trauma doesn't mean that you had something abusive happening in your life, या कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जहाँ पे आपके फादर या आपकी मॉम अच्छे नहीं थे. It's not about that. अगर आप एक फीमेल हैं तो you will pick up female energy. अगर आप मेल हैं तो you will pick up male energy. That is the reason you say ना, तू पापा के जैसा बनता जा रहा है, तू मम्मी के जैसे बनती जा रही है. So it's so important कि आपने जो relationship अपने माँ बाप को निभाते हुए देखा, आप कहीं ना कहीं उसको आइडियलिस्टिक समझ के जीते जाते हो. आपको लगता है कि यही एक तरीका है इसको जीने का. इफ माई मॉम टेल्स माई फादर ऑन एवरी फाइट, आई एम लीविंग यू, आई एम लीविंग यू, सो द चाइल्ड इज कैचिंग दैट कि द ओनली वे टू गेट लव फ्रॉम माई partner is to tell him I'm leaving you. डराओ उसको. To scare him, tell him, give him a fear. But living in 2025, we have realized this, that ये सारी चीज़ें काश हम इन सबसे बाहर निकल पाते, जिसके लिए हमें कोचेस की ज़रूरत पड़ती है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप सच में चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हो. इट्स जेन्युइनली, I mean, whenever I talk to any of my, sister, or I tell anything about it, तो जैसे हम भी तो उसी चीज़ से गुजरे हैं ना, तेरे साथ क्या ऐसा हो गया? तो I say, no, but I caught something else. You caught something else, right? It depends. What are we catching together? So it's super relatable to what you have said. And I hope that as society, we also change. But मेरा आपसे एक ना बहुत ही उल्टा सवाल है इससे. क्या आपको लगता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं,
एक आदमी या औरत के दिमाग में कभी गिल्ट आता है? आता है यार, गिल्ट तो हमेशा आता है। सिर्फ पॉइंट ये है कि ये सोचना कि वो एंटी सोशल है या वो चीट कर रहा है तो उसके दिमाग में कभी आता नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। अगर गिल्ट आता नहीं तो फिर खुलेआम ना करता। या आपको शराब जो है हर कॉर्नर में नहीं मिलती है। शराब बैन नहीं है दिल्ली में, तो ऑब्वियसली मैं गुजरात से हूँ, यहाँ पे तो है। सो बैन नहीं है शराब, तो आप I'll take some. So बैन नहीं है, पर हर गली कुचे में आपको मिलती भी नहीं है। सिगरेट आपको हर कॉर्नर में मिलती है। शनाया मुझे बताओ ज़्यादा हार्मफुल क्या है? सिगरेट। बट वो तो यार ओपनली मिलती है, तो हार्मफुल कैसे हुई? उल्टा होना चाहिए ना, बट ऐसा होता नहीं है। सो गिल्ट है इसीलिए तो छुपा के रखा है। गिल्ट नहीं होता तो खुलेआम करता, ओपन बताता कि यार मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो पॉइंट ये है कि मैन और वुमेन दे आर ऑलवेज गिल्टी। इट कम्स इन फेजेस। इफ इट इज इमोशनल इंटीमेसी, यू आर वरीड ऑफ सेइंग द सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। फिजिकल इंटीमेसी तो छुप छुप के मैसेजेस करना, मिलना, रॉन्डेवूज, बिजनेस मीटिंग्स एंड शिट लाइक दैट, ये करते हैं। बट गिल्ट तो सब में होता है। आई हैव रेयरली सीन समवन नॉट बीइंग गिल्टी। द वंस हु आर गिल्टी आर दे आर साइकोपैथ्स. They are like crazy psychopaths. They're not good people to have even as partners, affair partners also. Very scary. I agree and I disagree on this because I feel that कहीं ना जब एक आदमी चीट करता है तो उस पर एक वीक का लेबल लगाया जाता है, राइट? लेकिन जब एक औरत चीट करती है तो उस पर कैरेक्टरलेस का लेबल लगाया जाता है, राइट? बिल्कुल। ये आज से नहीं, बहुत सालों से चलता हुआ है। yes. इसी के साथ साथ एक बहुत ही छोटी एक सिचुएशन है जो शायद अभी बहुत रिसेंटली मेरे साथ हुई है। एक कपल है जो पिछले 12 सालों से 12 या 15 सालों से साथ रह रहा है। लड़का थोड़े टाइम के लिए कंट्री से बाहर जाता है एंड वो लड़की भी लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ रह रही है, इंतज़ार में है, प्यार में है, जो भी है। वो आता है इंडिया उसको मिलने के लिए एंड देन वो दोनों एक ट्रिप प्लान करते हैं कि लेट्स गो फॉर अ ट्रिप टुगेदर। दे गो फॉर अ ट्रिप एंड लड़की फाइंड आउट करती है कि वो तो मेरे ऊपर चीट कर रहा है, जबकि उनकी शादी होने वाली है, राइट? क्या उस मोमेंट पे लड़की को उसे माफ़ कर देना चाहिए या उसे वीक समझ के कि यार वो तो काफ़ी टाइम से बाहर अकेला रह रहा था, हो सकता है उसके बड़े सारे वीक मोमेंट्स आए हों, हो सकता है उसको फिजिकली बहुत ज़रूरत पड़ी हो, उस मोमेंट पर लड़कियों को क्या करना चाहिए? कनेक्टिंग दिस टू व्हाट यू सेड पहले, गिल्ट है कि नहीं इसके अंदर, तो गिल्ट तो दोनों में है। अगर वो वीक है तो भी गिल्टी है, कैरेक्टरलेस है तो भी गिल्टी है। तो लड़की को उससे बात करनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि व्हाई, व्हाट हैपेंड। लड़की को क्या उसे छोड़ना चाहिए या माफ करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन उसका आंसर। इफ यू आर अ बॉय, आई एम दैट गर्ल, आई से कि शनाया व्हाई डिड यू चीट ऑन मी, आपका जो जवाब होगा उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे भारतीय संविधान में आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगर मैं आपका खून करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपके नज़दीक में कुछ पड़ा है, आप उठा के मुझे मार डालेंगी तो आपको जेल नहीं होगी, यू आर नॉट गिल्टी देन। वाई? आई वॉज ट्राइंग टू किल यू, दैट इज वाई। सो इट मैटर्स कि उसने क्यों किया है। जवाब सुनिए फिर डिसाइड करिए, उसके पहले आप कैसे डिसाइड करेंगे? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। बिना जवाब सुने डिसाइड करना इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, जो आपने दूसरी चीज कही जो बहुत सही है, अगर लड़की चीट करती है उसका कैरेक्टर पूरा असैसिनेट किया जाता है, लड़के को वीक कहा जाता है, ये सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है। अनफॉर्चुनेटली मेन रन द सोसाइटी। These narratives have been given by men because men feel women are resources that they can just hold, and they want to control women. Because to be very honest with you, I am a man, I have no shame in accepting women are way better than me. 1,000 times. They are way more stronger, mental power, physical willpower, everything. मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐड देखे, रील्स देखे जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि विमेन इतना दे कैन नॉट लिफ्ट एज मच वेट एज अ मैन कैन। स्टूपिडिटी। लेट हर गेट ट्रेन्ड, लेट हर हैव न्यूट्रिशन।
I mean, I know scientifically it is said that women don't have enough in their body to do certain things. They have way more because it's not physical power alone, mental power is also there. So it is men, ये मर्द है जिन्होंने सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया है ताकि वो लोग स्कॉट फ्री जा सके. आई एम सो सॉरी, मेरे लिए वीक मोमेंट था, पर उस वीक मोमेंट में क्या हुआ, तुम गिर गए किसी के ऊपर. It cannot suddenly realize to your weakness just translates to bed. How does that happen? It's always a choice, right? It is a choice, Shania. And वो choice लेने का reason, if a man can justify, then I would say then she should allow him. If he can justify. Yeah. What will be his justification? That is very interesting. So I'll give you an example which I had with a client of mine. So they have been married. They've been married for roughly 15 to 20 years now. Very beautiful couple. They have 3 amazing kids. Now in that case, what happened is the female, because the husband was, traveling a lot, and the female fell in some sort of emotional connect she had with her squash partner. So they used to play squash, and squash partner was a man. They used to spend a lot of time together. She was sharing a lot with him. And जब शेयर करते करते उसको ऐसा एकदम अच्छा सा इमोशनल बॉन्ड आया. एक दिन they went out to drink. And one thing led to another. अब ये one thing led to another is very important. So बात करते करते उसको रियलाइज़ हुआ कि यार इसको तो मैं कितने अच्छे, he knows me so well. मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है, मुझे सब करके दे देता है. And then he offered that can we just go upstairs to the club है, होटल है, ऊपर रूम है, चले. तो she said yes. But she was guilty. The moment next day her husband comes back, she shares this to the husband. They came to me as a couple saying that what do we do? Very clearly asked them. I asked the husband, why do you think your wife did this? Are you at fault? He's like, maybe Sheetal, I did not give a lot of time to my wife. So I said, does that mean that it is okay for her to cheat? He's like, no, it's not. She should have told me. I asked the wife next, do you think that you're wrong? She's like, yes, essentially I'm guilty. That is why I told my husband. I mean, I really told him. मैंने उनको ये भी कहा कि आप चाहो तो आप भी किसी के साथ just have a night, so that we can balance it out. तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है. It doesn't happen that way. But trust broken. It took us 6 to 7 months, but it's resolved. You see what happened here? They spoke about it. But in this scenario, she found out. Right? It's not that the person came to her and told her. True. Right? True. अगर उसने आके बताया होता ना, तो बात so अलग that होती. would have been a very different Very scenario true. altogether. Very तब true. वो why का जो वो सवाल आता ना कि यार तेरी वो क्यों थी, Correct. वो फिर बैठ के बात की जाती, फिर वो इमोशनल कनेक्ट बनता. Correct. But you didn't tell me. You were hiding from me. You were found. You found out. You were caught. And You were caught. You were rather caught. Yeah, you were caught. And then you were being guilty that I am so sorry. I have done something wrong. But then for जिसकी वजह से मैंने आपसे सवाल किया था कि औरतों को कैरेक्टरलेस कहा जाता है और मर्दों को वीक कहा जाता है जब वो चीटिंग करते हैं. अगर उस सेम सिनेरियो में वो भी तो उतने ही मीलों दूर रह रही थी ना उससे. मर्द भी कैरेक्टरलेस ही है ना जी. एब्सोल्युटली. ऐसा ये सोसाइटी लेबल देती है. Exactly. हमें नहीं देना है. हमें देना नहीं है. हमें एक्चुअली उसके कैरेक्टर पे ही सवाल उठाने हैं. Yeah. वी डू सोसाइटी में से वॉट एवर दे से, ठीक है, नरेटिव कुछ भी हो जाए, बट कैरेक्टर उस लड़के का ही खराब है, लड़की का नहीं. Exactly. क्यों खराब है? वो छुपा के कर रहा था, पकड़ा गया. पकड़ा नहीं जाता तो करता रहता ना. Exactly my point. So problem is his character also. Yeah. The point is, it is the mothers and the females in the society only who say this also. They only give the label that the man is weak. Yeah. Man is not weak. Both have the same character. Both have the same weaknesses. Both have to be labeled equally. But yes, I have a slight bend towards women. I would never say a woman characterless. Usually there are multiple reasons for a woman to step out of marriage. I may be wrong. People might contest me on this. But मैं ऐसा मानता हूँ कि लड़कियाँ अगर एक शादी से बाहर निकलती है ना, there has to be some extraordinary thing. Otherwise it doesn't happen. Yeah, it doesn't happen. It is not so easy for a woman to step out of marriage because it's not so easy for a woman to leave everything and come and stay with a random person also and take her as a husband. This is again my personal perspective. No, I love that. No, honestly, I love that. Yeah. But do you think that औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है शादियों में माफ करने के लिए? Yeah. सबसे ज्यादा. Yes. पता नहीं, सहनशीलता एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ नारी का गहना है. मर्दों से कोई कहता ही नहीं है सहनशील बनने के लिए.
and that is stupidity to the core. Yeah. My mother was a female. She was the most powerful person. Whatever has happened to her in her life is how I'll treat my wife. Respect, utmost authority, and every single thing that my mother needs from me is that what I'll give to my wife. If I can do that for my mother, why the hell can I not do that for my wife? It is stupidity. Yeah. And it is only expected that women only will be tolerant, women will only forgive, women will forget, and women take pride in this. Let me be very clear. तुझे पता है तेरे पापा इतनी जगह पे जाके फिर भी मैं खड़ी रही, इसलिए ये शादी टिकी हुई है. It is women who do this. And now what are you telling to your child? We spoke about childhood trauma. Yeah. She is telling her daughter कि बेटा तुझे भी करना है, तेरा पति भी जाएगा, तू खड़ी रहेगी तो सही रहेगा. Why? It is these women who have defined the role. Man is an earner, women has to take care of a home. I think those rules are archaic, शनाया. बरसों पहले जब सोसाइटी को रिक्वायरमेंट थी तो वो ठीक था. आज की सोसाइटी में नहीं है रिक्वायरमेंट. Not required at all. So why should a woman adjust? Why should she only be सहनशील? Why should she only tolerate? She should take no shit. आपको लगता है कि मर्द इमोशनली अनअवेलेबल इसलिए हैं क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है एक्सप्रेस absolutely. कैसे करो, Absolutely. या मतलब कई बार मेरे साथ होता है. आई ऑफ कोर्स आई बीन मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स. लॉट ऑफ टाइम आई फील दैट he wants to say something but he's not saying it. Okay. And I would want to tell him ki please say it with full conviction that you feel this way. But I think they are, I don't know, या बनाए ऐसे गए हैं सोसाइटी की वजह से. Why do you think आज भी, मतलब इतने साल हो गए हैं, मतलब 2025 में बैठे हैं, आज भी आदमी अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखते हैं? एंड उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर आप आज स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लें, इमोशनल चीटिंग सबसे ज़्यादा औरतें करती हैं. आपका पति कैसा होना चाहिए इसके बारे में आपकी एक इमेज, एक धारणा बनी हुई है. वो धारणा कैसे बनी? विद माई ओन इमेजिनेशन. एंड कंट्रीब्यूशन क्या था उस इमेजिनेशन का? माई पेरेंट्स, माई सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स में मूवीज हैं, बॉलीवुड मूवीज है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एवरीथिंग इज देयर. द प्रॉब्लम हियर इज कि ये सब में ना मैचो मैन दिखाया गया है. We have a man who is very good. I mean, to be very honest with you, you hardly see heroes being weak. Yeah. You would not like a weak hero, yaar. You would not like a hero. You want a hero to beat up people. Yeah. वो खड़ा रहेगा, ऐसे फू करेगा, 100 लोग उड़ जाएंगे. वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है. न्यूटन अपने कब्र में ऐसे उल्टा हो रहा होगा देख के कि ऐसे लोग उड़ रहे हैं. बट दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. यू डोंट एक्सपेक्ट अ मैन टू कम एंड क्राई, मेरे साथ ये हो रहा है, दिस इज वेरी बैड, आई फील सो हर्ट. Now, you and me have also contributed to this. हम भी सोसाइटी है. हमने मर्दों को इस लेवल पे ले आया कि मर्द रो नहीं सकते, मर्द ये नहीं कर सकते, मर्द अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता है. अ मैन कैन नॉट टेक. सो विमेन गो थ्रू पीरियड्स. सो जब मासिक होता है तो 5-6 दिन द फ्लो गोज अप. शी हैज गॉन थ्रू मल्टीपल इश्यूज. मैन ऑल्सो हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स. आर यू अवेयर? यू नॉट. No one is aware. Man also every month goes through a phase where there is extraordinary fatigue. He Tell doesn't us have more about this. Yeah, he doesn't have the energy to get up on the bed. He also goes through hormonal changes. Only women have hormones. No, men also have hormones. No one talks about it, yeah. And no one gives man a sick leave, na. No one does. We are talking very progressively about females taking period leaves. What about men? I know men don't have blood flow, men don't have periods, but they also have hormonal issues. Hormonal imbalance के time पे every month there are phases when a man has extraordinarily low energy phases. It happens to all men. And हम क्या करते नहीं. तो हमने कभी मर्दों को अपॉर्चुनिटी दी नहीं है कि वो बता सके. बच्चा बड़ा होता है, देखता है, पापा बोलते हैं बेटा रोना नहीं, तुझे दर्द होता है तो क्या हुआ, बी स्ट्रॉन्ग. तो किसी के सामने नहीं रोता है. एक आदमी जो अपनी बीवी के सामने सारे कपड़े उतार देता है संभोग करने से पहले, अपने इमोशंस कभी बता ही नहीं पाता है. वो दीवार जो उसने ऐसी खड़ी कर रखी है, वो दीवार वैसी की वैसी रहती है. तो औरत को पता ही नहीं चलता कि मर्द के दिल में क्या है. काफ़ी बार आपने देखा होगा वो अपने बच्चों को बोलते हैं तेरे पापा बहुत फील करते हैं बेटा, बट वो बोलते नहीं है, वो ना अंदर ऐसे रखते हैं. उसको कैसे पता? 30 साल से देख रही है अपने पति को कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं. रोते हैं अकेले अकेले छुप छुप के. मूवीज़ में रोते हैं, आँख ऐसे पोंछ देते हैं.
फीलिंग है, दिखा नहीं पाते। अब क्या करें, सोसाइटी में आप हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, हम बात ही नहीं करते। कोई नहीं बात करता है। इतने पॉडकास्ट है, किसी ने सुना है आपने ऐसे कहते हुए कि मर्दों को भी रिक्वायरमेंट है? नो वन टॉक्स अबाउट इट यार। Why not? Ask your husband. He's also must have fatigue issues. Once a month, he also goes through phases. We all go. The problem is that हमने एक ढांचा क्रिएट किया है। हमें हमारे हीरोज, हमारे एक्टर्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन रोते हुए नहीं पसंद। विनोद कामनी रोया 96 वर्ल्ड कप के बाद। वी हेटेड विनोद कामनी। कपिल देव cried when the match fixing saga came. We did not say Kapil Dev. We didn't like him because how can he cry? Role model. Dhoni has cried. So many times people go through things like that. We don't like it. As a society, we can't accept our heroes weak. Yeah. But men can also be weak. आप अभी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे कि you as female you're not giving that opportunity to your husband to open up. वो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाए? So prima facie आप अपने हस्बैंड के साथ कितना वक्त गुजारती हैं? I mean पूरा दिन साथ में होती है, I'm not saying that, but personal time कितना होता है आपके उनके साथ? आई थिंक हफ्ते में 2 बार। ये जो हफ्ते में 2 बार होता है, तो आप क्या करती है when you're out of your home? Do you have time outside the home? Yes. अकेले उनके साथ होती है या you have friends and stuff? Mostly it's both of us. Okay. Primarily if you want your husband to open up, this is for everyone. अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ ढंग से कम्युनिकेट करें, इंश्योर करें कि कम से कम महीने में 15 दिन में एक बार you and your husband should have an alone time. Okay. Alone time का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बाहर जाएं, बट alone time का मतलब ये है कि आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो, एंड यू शेयर योर हार्ट आउट। एनकरेज करें उनको बिना जजमेंट के उनकी बातें शेयर करने के लिए। ट्रिक ये है, सारी बीवियों को पता होता है पति गलती क्या करते हैं। पतियों को बताया कि उनकी जो गलती हो तो माफ़ है, इट्स ओके, तो क्या हुआ तुमसे गलती हुई तो, आई अंडरस्टैंड। एक बार 2 बार करेंगे तो पति अपने आप अपनी दिक्कतें बताने लगेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि बीवी गुस्सा नहीं हो रही है, बीवी ने गलत नहीं बोला है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कल ना यार मेरे दोस्त के साथ ना ड्रिंक पीने चला गया, तो 2 ड्रिंक पी के घर पे आया था, इसके लिए लेट हुआ था। यूजुअली मैं ये कहता तो मेरी बीवी गुस्सा हो जाती, बट अभी इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम तो स्ट्रेस्ड इतने हो वर्क पे, चलेगा, तुमने एक बार हाँ कह दिया और चीज़ें आने लगेंगी। एंड जज मत करना, डू नॉट बी जजमेंटल, डू नॉट स्टार्ट सेइंग ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तुम गलत हो, लेबल मत करना। एक्सेप्टिंग बनो, जितने आप एक्सेप्टिंग बनोगे ऑटोमेटिकली उतना आपका पति आपसे शेयर करने लगेगा। डर क्या लगता है पता है? जितना पत्नियों को डर लगता है कि पति क्या कर रहा है, उतना पतियों को भी डर लगता है कि मेरी बीवी शुड रिस्पेक्ट मी, शी शुड नॉट फील दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। वो रिस्पेक्ट के चक्कर में ना चीज़ें बताना कम कर देते हैं। बेटर टू एक्सेप्ट विदाउट जजमेंट, बी स्मार्ट, एक्सेप्ट द फ्लॉज फर्स्ट, make it easier for him to share more. And how to stop your communication turning into a fight? How to stop your communication from turning into a fight? See, बहुत आसान है। आपको पता है आपको गुस्सा किस चीज़ में आता है, आपको गुस्सा क्या दिलाता है। आई एम श्योर आपको पता है आपके हस्बैंड को भी किस चीज़ में गुस्सा आता है। वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा टची फीली है, आपको पता है कि आपका हस्बैंड गुस्सा होने वाला है, तो इंश्योर करें आप उस पर रिएक्ट ना करें। हम इंसान ऑब्वियसली बंदरों से पैदा हुए, आ गया है। इफ आई स्टार्ट डूइंग दिस मोर ऑफन थ्रू आउट थिंग, देयर इज अ टाइम दैट यू विल आल्सो फील इची, यू मिमिक मी। ह्यूमन बींग्स मिमिक ईच अदर, दैट इज वाई आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद हस्बैंड एंड वाइफ एक जैसे दिखने लगते हैं। होता है ना? कैसे हो सकता है? जस्ट इमेजिन, माँ बाप अलग, एरिया अलग, 15, 20, 25 साल बाद सडनली दे स्टार्ट लुकिंग लाइक ईच अदर, बिकॉज वी मिमिक habits, we mimic patterns. So the best way to do is, if he says something which is supposed to make you angry, don't. He will also not get angry. It will not escalate. Easy communication. I think we have really learned a lot from this entire conversation. And believe me when I say that it was super informative. The best thing was that why do you think men doesn't go through anything but you only do? But it was amazing to know. एंड आई रियली होप कि इसके बारे में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, सो दैट जितना हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस ट्रीटमेंट को भी इक्वल करके ही एग्जीक्यूट करें। माय अनदर क्वेश्चन टू यू, कौन से वो साइंस होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है? 3 important signs, 3 very important signs that something like this is happening.
Okay. Number one, extraordinarily secret behavior. Extraordinarily secret. When your husband's with you for such a long time, suddenly he says that, I'm doing this, I don't want to do this, I don't want to do that, don't check this, don't check that. मैं मेरी चीज़ें खुद कर रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है? सडन सीक्रेसी नंबर वन. फ़ोन के रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो, रूटीन के रिलेटेड हो. आपका हस्बैंड हमेशा आपको कॉल करता है द मोमेंट ही लैंड्स एट सम प्लेस. सडनली फ़ोन का नेटवर्क कम हो जाता है, कॉल्स कम आने लगते हैं. अगर वीडियो कॉल्स होने चाहिए तो रेगुलर कॉल्स हो जाते हैं. फर्स्ट साइन. नंबर टू, डिस्टेंस. यू सडनली फाइंड दैट योर कपल में तुम्हारा पति का चॉइस ही बदल गया है. सडनली you love Chinese, he loves Chinese, both of you love Chinese. Suddenly you go to a restaurant and he started Mexican. You're not even aware. When did he have this habit of Mexican? That should be the first question you ask. तुम्हें मेक्सिकन कब से पसंद आने लगा? तुम्हें तो मेक्सिकन बिल्कुल पसंद नहीं था. वो जवाब आपको क्लैरिटी देगा कि क्या हो रहा है. इफ़ इज जस्ट सिंग यार मैंने ना शो देखा था, मुझे बरीटोज बहुत अच्छे लगे उसमें अंदर, मैंने बरीटोज ट्राई कर लिया, इसलिए सोचा था करूँ, तो समझ में आएगा. बाइबल है. बट नहीं तो it is scary. Secrecy, change of habit, and the most important thing, sudden change in libido. Can you explain that? Yeah. Your husband behaves with you in a particular manner. Sudden change in the bedroom habits. Suddenly getting very horny. Suddenly performance getting improved. Or the other way around. Sudden distance. Suddenly saying, "Nee, I don't want to hold you. I don't like this. I am asexual." Oh, very common. Very common. I'm asexual. Really? I thought people don't even know about that. Oh, they do. यार ChatGPT और OTT के ज़माने में लोग ऐसे बहाने ढूंढ रहे होते हैं. Every second person feels that they are going through depression because Deepika ma'am has said that depression is the thing. Yeah. And people like us have to bear the brunt because unfortunately the real people who are going through it, they are not getting access. So this is the third bahana. 3 things, clear signs. आई थिंक औरतों के वैसे भी जो 6 सेंसेस होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. वैसे ये जेंडर न्यूट्रल था. नहीं, बिकॉज आई एम अ फीमेल सो आई एम ओनली टॉकिंग I फ्रॉम know, माई I know. परस्पेक्टिव. Suddenly she starts feeling that she is being replaced. She starts feeling that all those things. Replacement is a very important thing, and I Yeah. always give a lot of credit to women because women always know No way. that red flag उनके दिमाग में टक करके आ ही जाता है. Yeah. कुछ तो हो रहा है. Yeah. And that is usually right. It may not be cheating, but it is a beginning of something like that. So it is good to make sure that as your partner should be aware that मैं comfortable नहीं हूँ. तो वो पार्टनर अगर अच्छा है ना शनाया, तो वो इंश्योर करेगा कि आपको कंफर्टेबल कर लेगा. Just for the reference of the audience, her husband is there in this room. Yeah, and we're not talking about my marriage, guys. One very, very important question. Because हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट? पार्टनर भी उतना इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स भी उतने इंपॉर्टेंट हैं. उसको बैलेंस कैसे किया जाए? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी और मेरी लड़ाई हुई है, आपने अभी उसे फिक्स किया है, राइट? एंड देन दोस्त का फोन आता है, चले हम बाहर चलते हैं कहीं पे, एंड देन व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी एट दैट टाइम? You should be my priority. See, marriage goes through multiple things. Like I'm a married man. I've been married for the past 13 years now. So now one thing which I know for a fact is friends are very important. I've lived and I'll die for my friends, and my friends are aware of it. But the problem is, and the point is that I am invested in the marriage. If I'm invested in the marriage, if my wife, we've gone through shit. Yeah. My friend calls me like, you know what, आजा यार चल दारू पी के आते हैं यार, गेड़ी मार लेते हैं, कुछ भी होता है. I'll say कि दोस्त थोड़ा वक्त दे, बाद में बात करते हैं. अरे क्या बकवास है, जब देखो तू बीवी के पल्लों में छुपा रहता है. तो दैट फ्रेंड इज नॉट अ गुड फ्रेंड. दैट फ्रेंड शुड अंडरस्टैंड कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या है. वो दोस्त बहुत खराब होते हैं जो ऐसे मौक़ों पर भी आपको खींच लेते हैं बाहर, who make you feel bad about being with your partner. They are bad friends. Stay away from them. Take them out of your life. Very important. Friends are important, but your unit, your one unit, right? That is equally important, guy. I mean, like, but yes, if the same friend calls and says कि यार मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मैं फंस गया हूँ, Of course you will run. so this is how things are.
Yeah. So you have to actually take it the same way. Yeah. You know, you're absolutely right, because the moment you said that बीवी के पल्लू वाला जो word है, because हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. Henpecked husband. Oh yes. So दोस्ती होते कभी नहीं, सबसे ज़्यादा खींचते हैं अपनी टांग, तो बीवी के पल्लू में छुपा रहता है. छुपा रहता है तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी है, बाजू वाले की बीवी के तो पल्लू में वो नहीं. Exactly. I'm not sure अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं कि नहीं देखी है, बिकॉज बिग बॉस के जो विनर हैं गौरव खन्ना, उनकी वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चल रही है, जहाँ पर वो मीडिया से ये बोल रहे हैं कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बच्चे हों, लेकिन मेरे लिए मेरा पार्टनर इतना इम्पोर्टेंट है, जिसको माँ बनना है वो खुश नहीं है, उसको नहीं चाहिए. तो वो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन कुछ होती है, एंड देन ही सेज दैट मेरे लिए मेरी पार्टनर से बढ़कर कुछ है ही नहीं, हम दोनों ने माँ बाप बनना है. अगर उसको ये नहीं चाहिए, आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, बिकॉज इस पे बिना कॉम्प्रोमाइज के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. तो लोगों ने नीचे लिखा कि अरे आप तो मेल हैं, अगर आपका कोई डिसीजन है तो आप मेड रख कर दे दो, आप ये कर दो, आप ऐसा कर दो. इतने सारे ओपिनियंस आए. एंड देन नेक्स्ट कुछ ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पर ही इज आकांक्षा एंटर करती हैं बिग बॉस हाउस में, एंड आते ही वो उसको जैकेट पहना रहा है, उसको बोल रहा है कि पानी पी लो, तुमने, मुझे पता है तुमने नाश्ता नहीं किया होगा आज, तो मुझे पता है क्योंकि तू मेकअप करते हुए तेरा पूरा टाइम चला गया होगा, यू मस्ट हैव नॉट ईटन. नाउ पीपल आर सेइंग दैट दे आर डूइंग इट मे बी फॉर द स्क्रीन. ऐसा हो सकता है कि वो कर रहे हो, बट इफ वी omit the screen part, just imagine the detailing that you are aware about your partner, कि what time he or she eats and what he or she must have done in that situation. बट जो बाहर देखने वाले लोग हैं उनको लग रहा है अरे इसकी लाइफ में बस यही है क्या, बस क्या इसकी लाइफ में और कोई इंसान ही नहीं है क्या, ये तो पल्लू में बंधा रहता है बस अपनी बीवी के. या एंड सेम गोज फॉर wife also. When I go with my girlfriends, they might also say the same thing, no, that arey yaar sometimes go without him also, no, but I enjoy, I love going with him, so what can I do? So I really hope that with time society also changes their notions and changes the way they perceive these relationships. Who is society? Us. Good. Believe me, us. Good. Very good. Yeah. If you change and I change, the society will change. Exactly. See, per se, I do not know what happens online, what we see on screen, how much of truth it is. I cannot comment on the veracity of it. Yeah. But एक चीज़ जो मैं हमेशा मानता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप रह सकते हो, बातें शेयर कर सकते हो, तो आपके लिए वो एक पार्टनर काफ़ी है. और आपके पास 50 दोस्तों की ज़रूरत नहीं, you just need couple of friends, that's more than enough. Yeah. Since we're talking about Instagram, we're talking about कि इतनी सारी रील्स, इतने सारी जो हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पर, उसी के साथ साथ एक कपल गोल्स का भी टैग आता है, राइट? जैसे हमारे विराट और अनुष्का की वीडियोस लोग, आई थिंक हर एक कपल ने तो ज़रूर शेयर की होगी. देखो कितना प्यार करता है विराट अनुष्का से, देखो कैसे हर एक टाइम पे वो फ़ोन पे रहता है उसके साथ. सो आपको लगता है ये नॉर्मल कपल के लिए बहुत डेंजरस है? लाइक वी आर अगेन वर्किंग ऑन आइडियलिज्म. मैंने इसको शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम बुलाता हूँ. ठीक है ना. उसका रीज़न ये है कि ये तो हम बचपन से करते आए, माँ बाप करते ही थे. देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा पढ़ता है, तू क्या कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है. विराट अनुष्का इज अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग. हम लोग कंपैरिजन हमें बहुत पसंद है, हमेशा करते हैं, पॉजिटिव पे फोकस करते हैं. कपल गोल्स अच्छा है, पर आपके कपल गोल्स आपके हैं, राइट? व्हेन शनाया एंड नितिन आर मैरिड, दे हैव देयर ओन आइडियोलॉजी, उनके खुद के कपल गोल्स है. तो आपके कपल गोल्स और विराट अनुष्का को कपल गोल्स सेम नहीं हो सकते हैं. विराट में भी वीगन, आई डोंट थिंक नितिन इज वीगन. सो आई मीन दैट डजंट मैच, इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट. एब्सोल्युटली. सेट योर ओन गोल्स. जो अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया से बोल लीजिए. जैसे मैं कहता हूँ, मैं दीपिका का नाम पहले लिया था. इट वॉज गुड दैट शी केम आउट. वी सॉ दैट सच अ पावरफुल पर्सन ओपनली सेइंग दैट येस आई वॉज डिप्रेस्ड. बट हमने उसके अंदर से क्या समझा, अरे सबको हो सकता है, तुमको भी. तो गलत चीज़ें हमने बात करनी और सोचनी स्टार्ट कर दी. कपल गोल्स बहुत बेहतरीन है. एवरी कपल शुड हैव अ गोल. कपल का गोल बच्चे की पढ़ाई, बच्चा करना, या मेरे को सारे के सारे वर्ल्ड पे जाके हर सिंगल कंट्री में जाके टूर करना इज़ नॉट कपल गोल. Couple goal is when both of you want the same thing or different things, trying to make a path which takes you there. That's enough. That is good enough.
अब वो आप रोज़ सुबह एक दूसरे के साथ उठ के एक कप चाय पी के करते हो, या रात को एक दूसरे के साथ डिनर करके करते हो, या महीने में एक बार गाड़ी में ड्राइव पे जाके करते हो, तो आपके ऊपर इट्स योर एंड नितिन्स कॉल. हाउ कैन आई कम एंड से यू नो व्हाट, कपल गोल्स आर नॉट एज पर नॉर्म्स. व्हाई? The scale has been set by Virat and Anushka. Doesn't work like that. Exactly. वो कहते हैं ना कि if I'm not posting about my wife, that doesn't mean I'm BV-less. Absolutely. Yeah. So, Absolutely. you know, I really don't want this conversation to end. I know that we've been recording this for a while and मेरे इतने सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, and promise me that we will definitely do this, our part 2. I do. Right. Thank you. I completely believe on your I do for sure. But मैं भी थोड़ी ज़िद्दी हूँ. I will definitely have my last question on your way, and that is that what is that one hard truth about love and marriage which no one talks about? About love in marriage. The hard truth about love in marriage which no one talks about is marriages are flawed externally, and so is love. It is okay to get angry at your spouse. It is okay to suddenly feel like I don't love my spouse. But it's not okay to not share that with her. Or it's not okay to just say that it's okay, I'll just share it with my friends. Because marriages and love are not ideal. बिल्कुल नहीं, किसी भी एंगल से नहीं. I mean, I know at the risk of sounding repetitive, Ram and Sita are not ideal relationships to have. Neither is, it's not good to have a husband like Ram. It is not good to have a lover like Krishna, because both leave, right? It is amazing to have a husband like Shiva and Parvati. They are stayed, they are stable. Both, one left her kingdom and went to her husband, and one left his ability to just do nothing to do something extraordinary. Love and marriages are like that. Flawed extraordinarily. जितना ज़्यादा हम समझे इस चीज़ को, उतना embrace करें, उतनी आपकी relationship A-okay रहेगी. I'm so grateful that you have actually said this. मेरा जो सबसे बड़ा टेक अवे है ना इस पूरी कॉन्वर्सेशन का, ऑफ कोर्स प्रोफेशनली जो मैं काम करती हूँ, अगर मैं उस हिसाब से सोचूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस, राइट? जब आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप जितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से करिए, लेकिन सही तरीके से करिए, द वे यू सेड इट. And second thing, the biggest takeaway rather, is that if you are happy being naked in front of someone, don't just do it with your clothes, do it with your mental space as well. Absolutely. It's so important कि आप फिर fully naked रहें किसी के सामने, और वो सामने वाला भी आपको उतने ही दिल से आपके हर एक बॉडी के फ्लॉ को, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो. So thank you so much. My mom always says this, that जब भी कोई आपके सामने बैठता है शनाया, तो वो आपके लिए गुरु होता है और आप शिष्य होती हैं. तो गुरु है तो गुरु दक्षिणा भी है. Oh, wow, that's nice. That's really nice. So I have a very small gift for you. Oh, I thank hope you love it and Thank enjoy you, it. Shania. Thank you, really nice. Thank you for being such an amazing hostess. Thanks. Thank you. Yep. Thank you so much. Thank you. It's a pack up. Thank you, guys. Thank you. Being on Wed FM India was amazing. First and foremost, a lot of gratitude to the team of Wed FM to arrange this on Sunday, which is a break day. They're all here together, and also on the hostess and her husband, Shania and Nitin, are amazing. And she has got so many questions and so much relevant information that it didn't make me feel that I was a podcast. I think I technically gained a lot of knowledge by talking to her too. There are a lot of things which are like not spoken about in our society. They are uncomfortable, and हमें ऐसा लगता है कि when we don't speak about these things, we don't talk about these things, it will automatically take care. I feel that conversations which are uncomfortable, they are the ones which drive the society, not silence. And Wed FM as a platform is bringing across these uncomfortable truths to people so that people can actually learn and gain knowledge and handle their own lives in a better manner. So much power to the team, and kudos to Shania and Nitin for such an amazing job.